18th century was UK's century, as they ruled majority of the portion of the world and they rise towards number one position. During Industrial Revolution, 20th century, it was US and Japanese century, German century, as they became top countries of the world. Till 18th century, from the creation of the earth, India was seen as number one country of the world, who used to export majority of the goods to whole world. Post the year 2000, India is again on the same radar and the world is looking towards India as we are approaching towards the same levels. Post 2000, India has outperformed the whole world. World economy grew by just below 5% and India is growing about 8%. As we are growing from $500 billion economy to 1 trillion to 3 trillion this year, and we are towards 10 trillion economy in coming decade, India is going to jump its position towards third largest economy till 2030. So what changes we are going to see in India? Which industries grew during last 10-15 years? Which company were able to grow due to this growth of those industries? Which industries we may see growing in coming 10 years? The whole presentation has been created by some groups of students around the country. So kindly bear it. There would be some disturbances. Kindly bear it. If the voice would not be clear during this presentation, because these students come from varied and different professions, they would be investing their time on research despite their hard work in their own professions. So I thanks to all those students. Let us begin our journey towards India's largest expected companies of 2030. Okay. Yes. चलेगा. हनुमेश जी, please try to speak. Yes. अभी आपका आवाज loud and clear. It's clear है. Can you hear me now, sir? Yes. You are audible now, Hanumesh. Okay, great. Thank you so much. Thanks, Piyush ji. I think so Hanumesh, आप अपना थोड़ा background बताओगे? Sure, sir. My name is Hanumesh. I am from Bangalore. I work for a private insurance company, and thanks to Piyush ji, I think not only we learned about the market and understanding about the companies, but I think he is giving exposure to make us really confident and talk about the companies and in a way where we can present it to others, and that's actually commendable. I think very rarely people actually take their students to the next level. And thanks Piyush ji and profit from it for all this effort. And I'd like to thank all this my team members. Vijay Chaudhary ji actually has been a great support. Vijay Chaudhary ji and Naveen, Sahil, Bhavin Modi and Prathamesh, who helped us in doing a research to make a list of companies which are in the top 50, Nifty 50 May, I mean top 21 companies which are doing really well and which are doing more than average growth and in terms of profit as well as in the sales. So I would request, I mean, I think Vijay ji was giving just a brief introduction about his companies and about his research. If he can talk about few words about it, then I think I'll take it from there. Vijay and Naveen. Okay. Vijay Chaudhary ji, I think Vijay bhai is from Delhi and he is a retired person, right? अनुमेश जी, आप विजय भाई, नवीन जी, साहिल, आप सब लोग कब से ये एक्सरसाइज करने का प्रयास कर रहे थे? कितने टाइम से, कितना टाइम लगा ये पूरे एक्सरसाइज में? It is just about last 1 week, sir. I think it's last 1 week. I think everybody in their free time try to do the research and gain the details and
I think you helped us giving us some standard formats to people, how we can all standardize the old research analysis, and that helped us. And everybody they did their bit to discuss and find out the how do we take the source, which is the right source to take the data that is from the annual reports of the companies, and do our research. And everybody. So anybody from your team, Anumesh ji, is full-time stock marketer, or all are working in other professions? Most of them are working in other professions, sir. But I think Naveen is actually getting into become a trader, but I think he's just begun his journey only from profit from it. Right. Naveen is from IT. I think yeah, IT he's from IT sector. Yeah. Okay. From IT, I think he's now trying to venture into this. Right. Good. So let me start your presentation, and let all see what your team has created. Yes. Yes, I think before that, if Vijay and Naveen can just add a few lines, I think that would help. Yes. And till that time, I will make you a presenter so that you can present the same thing from your end. Right? It's all right? Absolutely. Sure, sir. Let me be presenter. Yeah. Hi. Good evening. Naveen Venkat from Bangalore. So Vijay ji, do you want to start or do you want me to take over? Sorry, Mr. Hanumesh ji is giving a brief introduction. Let him first. No, Vijay ji, I mean, you can just talk about the companies, what you have done a research, and maybe a little more about you, so that everybody gets understanding about. Okay, Hanumesh bhai. Hi everybody, I'm Vijay Chaudhary from Delhi. I'm a retired person from airlines industry, Air India. One thing, after retirement, I thought, what should I do? Now I am retired. Instead of wasting my time, I thought, why not to study about share markets? मैंने इससे पहले एक किसी इंस्टीट्यूट में एक सेकेंड Yes, continue Vijay bhai, continue. टेक्निकल एनालिसिस का कोर्स किया, लेकिन वो 5-6 महीने चला. आई वेस्टेड मनी आल्सो, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं हुआ. उन्होंने इंडिकेटर्स बता दिया, इसका ये काम है, इसका ये काम है, यूज कैसे होना है, कब करना है, कोई समझ में नहीं आया. तो अल्टीमेटली मैंने पीयूष भाई का प्रॉफिट फ्रॉम इट का यहाँ पे हौज खास में एक सेमिनार अटेंड करा, जो इनका एनुअल मीट होता है. तब इनकी जितने सिंपल भाषा में बोला, मुझे बहुत अच्छा लगा. लेकिन तब ये अपना प्रैक्टिकल वर्कशॉप देते थे. मैं डरता था कि 3 दिन में मेरे को समझ में नहीं आया तो सब बेकार हो जाएगा. तो जब इन्होंने ये ड्यू टू थैंक्स कहूंगा, वैसे तो लोग बाग इसको बुरा कह रहे हैं कि लॉकडाउन, इनको मजबूरन हो गए, पीयूष भाई को ऑनलाइन वर्कशॉप स्टार्ट करना पड़ा. तो मैंने कहा चलो इससे तो मेरे को समझ में आएगा, क्योंकि बार बार अगेन एंड अगेन आई कैन गो थ्रू द वीडियोस. और इसका मेरा ये सबसे वाइजेस्ट डिसीजन था टू ज्वाइन दिस ऑनलाइन वर्कशॉप. ये तो चलो हो गया, हमने सीख भी लिया, लेकिन उससे बड़ी अच्छी बात मेरे को जो लगी है, और किसी इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपका कोर्स खत्म, उनसे कनेक्शन खत्म. पर यहाँ पे प्रॉफिट फ्रॉम इट में ऐसा नहीं है. हमारा कोर्स खत्म हो गया, लेकिन हमारा एक संबंध बन गया, एंड इट्स फॉर एवर. जब तक हम चाहेंगे और जब तक ये चलता रहेगा, वी विल बी इन टच. एंड पीयूष भाई इज सो ग्रेट. जो भी नहीं समझ में आता है, जो हम इनको इंक्वायरी डालते हैं, तुरंत ये उसका क्लैरिफिकेशन देते हैं. ये तो एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया. अब ये है कि ये एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कि ये हमने ऐसे ऐसे बनाना है टू नो अबाउट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज. निफ्टी 50 की जो टॉप कंपनीज होती हैं,
उन्हीं में ही इन्वेस्टमेंट करके फायदा है, या यह अंदाजा लगाना है कि उन टॉप कंपनीज में दूसरी कौन सी एंटर करेंगी। इस एक्सरसाइज के लिए हमने मिलके एक रिसर्च करा है स्टॉक्स के बारे में। मेरे को 10 स्टॉक्स दिए गए हैं A to B करके। उनमें सबसे पहले है अदानी पोर्ट्स। अदानी पोर्ट एक ये है, इट्स इन पोर्ट्स हैंडलिंग, मैरीन पोर्ट्स एंड अपना लॉजिस्टिक्स। इसका अदानी पोर्ट का सेल्स इज ग्रोइंग बाय 26%, प्रॉफिट बाय 18% सिंस लास्ट 10 years। ओके, जो 10 year बैक का जो उसका सेल्स था, आज उससे भी 3 times वो प्रॉफिट कर रहा है। जो उसकी सेल्स की को ही उसने मींस मार्केट कैप उसका एट प्रेजेंट इज 73,000 करोड़ एंड उसका जो पास्ट ग्रोथ को देखते हुए और जो ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, एक ये अदानी पोर्ट्स ग्रोइंग इंडस्ट्री में, क्योंकि हमारा आने वाले समय में इंडिया इज अ ग्रोइंग इकोनॉमी, हमारा व्यापार बढ़ने वाला ही है, तो इसका और भी बढ़ेगा। और इसके अगर हम उसके 18% प्रॉफिट से भी लगाएं तो 2030 तक ये 73,000 का हो जाएगा, 3,83,000 करोड़ इसका मार्केट कैप हो जाएगा। तो ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है, इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट कंपनी इज एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स हमारे एक डेकोरेटिव पेंट्स, घर के पेंट्स काफी इसमें आता है। इसके काफी वोलेटाइल भी रहता है इसका जो प्रॉफिट है, बिकॉज इट ऑल डिपेंड्स ऑन क्रूड प्राइसेस। आजकल क्रूड प्राइसेस डाउन है तो इसका बढ़ने वाला ही है आगे। इसका अभी मार्केट कैप है, सॉरी, इसका सेल्स ग्रोथ है लास्ट 10 years का 12%, प्रॉफिट ग्रोथ विल बी 13%। कंसीडरिंग पास्ट परफॉर्मेंस, ये इसका मार्केट कैप विल बी अराउंड अबाउट 5 लाख करोड़। ये अभी वैसे तो नंबर 14 पे है एज पर लिस्ट ऑफ निफ्टी कंपनीज मार्केट कैप, और 2030 में भी ये इसको मेंटेन ही करेगा। इसके बाद है एक्सिस बैंक। सॉरी टू इंटरफेयर विजय भाई, यस सर। आपके पास 10 कंपनी है ना टोटल? 10 कंपनी? हाँ जी, हाँ जी, 10 कंपनी। इसमें सबसे बढ़िया ग्रोथ करने वाली कंपनी कौन सी है 10 में से? बजाज फाइनेंस। कौन सी कंपनी का है सर? बजाज फाइनेंस। उसका तो sales is growing by 40% and profit is growing by 50% since last 10 years। हाई ग्रोथ है। तो बजाज फाइनेंस एक हुआ फाइनेंस में से हाई ग्रोथ, राइट? जो वेरी हाई ग्रोथ। कल निफ्टी 50 में ये नहीं था, पर ये हाई ग्रोथ के कारण एंटर हुआ, राइट? यस सर। आपकी अदानी पोर्ट हाई ग्रोथ के कारण वो भी निफ्टी 50 में आई हुई है। और कोई है जो 20% से ज्यादा ग्रोथ से आपकी 10 कंपनी में बढ़ रहा है? हाई ग्रोथ नहीं, इतना हाई ग्रोथ तो नहीं है। बस दूसरा है एक बजाज फिनसर्व। यस यस, बजाज फिनसर्व। हाँ, बजाज फिनसर्व में, लेकिन इट्स अ होल्डिंग कंपनी। ये यहाँ इसमें अलग अलग कंपनीज का, बजाज फाइनेंस का भी है, एंड इंश्योरेंस जो है उसका बजाज अलायंस का, वो भी ये देखता है। और जो बजाज अलायंस, LIC, बजाज अलायंस, GIC, ये भी काफी कंट्रीब्यूट करते हैं। दीज आर हाई ग्रोइंग सेक्टर्स। ओके।
तो हम ये सेक्टर को आने वाले समय में बढ़ता हुआ देखेंगे और ये अपनी जगह को और निफ्टी में आगे ला सकती है, बराबर ना विजय भाई? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सर। ये अभी इसका मार्केट कैप इज 97,000. इट विल बी क्रॉसिंग 4 लाख crores in 2030. Okay, right. Currently, So its that's good. position is its position number is 25. It will most probably come occupy number 19. It will come in top 21. ओके, तो आपका जो टॉप 21 का जो लिस्ट है उसमें बजाज फिनसर्व का भी नाम होना चाहिए, है ना, टॉप 21 में? राइट। यस सर, यस। मुझे और एक चीज बताइए विजय भाई, आपके लिस्ट में से सबसे खराब ग्रोथ किसका है? खराब ग्रोथ देखो, आप, मुझे ये भरोसा है कि आपके पास जितनी भी कंपनी होगी, इनफैक्ट आप सारे टीममेट के पास जितनी भी कंपनी होगी, नन ऑफ द कंपनी वुड बी डी ग्रोइंग, मतलब कोई भी कंपनी का धंधा कम नहीं हो रहा होगा, क्योंकि इंडिया इज ग्रोइंग इन डबल डिजिट, राइट, लास्ट 10 इयर्स का। पर फिर भी अगर कोई सेक्टर ऐसा है जो इंडिया से भी कम ग्रोथ से बढ़ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि दैट इज एवरेज सेक्टर। मेरे ख्याल से कोई है ऐसी कंपनी जो कम ग्रोथ वाली है? सर ये अपना भारतीय इंफ्राटेल काफी कम ग्रोथ है इसका। ओके, राइट, करेक्ट। पिछले डिकेड का ग्रोथ उसका कम है। उसका जो आज से 10 साल पहले जो उसका प्राइस था, इट्स ऑलमोस्ट सेम आज की एट प्रेजेंट। करेक्ट, राइट। ओके। सो विजय भाई धन्यवाद आपका। अनुमेश जी, देखो विजय भाई ने आपकी जो निफ्टी 50 का जो रिसर्च था उसमें 10 स्टॉक का विजय भाई ने किया था, एंड he is having some companies which have grown well and we can expect those companies would grow well, right? मैं चाहूंगा अभी अनुमेश जी, अभी आप यहाँ से कंटिन्यू कर लो बाकी की जो कंपनीज है उसके ऊपर, और आपकी टीममेट से हम वापस बाद में बात कर लेंगे, बराबर की नहीं? जैसे नवीन है उनको भी बात करनी है, लेकिन अभी फिलहाल आपके डेटा पे थोड़ा डिस्कशन होना जरूरी है। Sure, I understand, sir. In the interest of time, I think we'll continue. Yes. So I'm primarily I want to begin with the talking about the largest market of India, which is Nifty 50 stocks. And before that, I want to start with whatever the companies which were the biggest companies in the 1995. So the companies which were biggest in 1995, which are the largest companies of yesterday, which are SAIL from metal industry. It is one of the PSU which had a market cap of 15,000 crores. And then was the Reliance Industry, the second one, which is from oil and gas industry, which had a market cap of 12,000 crores. And MTNL, which is from a telecom industry, which had a market cap of 10,000. And Hindustan Lever, and from a personal products industry, I mean, it had a market cap of 8,000, and Tata Steel had a market cap of 7,000. So these were the top 5 companies of 1995. Just to give an understanding that what has happened to these companies in today's condition, in 2020, the market cap actually has come down from 15,000 to 13,000, and its ranking has gone to 200. Which was number 1, which has come down to 200. It is because of the industry it is in, because the metal industry is degrowing, and also there are many other reasons. But if you look at the Reliance, they earlier were limited to oil and gas, but now I think they diversified their business into many more other industries, which has ensured their growth consistently, and they have outperformed, and their market capitalization has touched to 10 lakh crore. And this is the first company in India which has crossed 10 lakh market cap. And if you look at the MTNL, the market cap which was 10,000, which is now just barely less than 600 crores. So it actually has come down to a small cap stock. So there are many people keep talking about, if somebody had invested in SAIL or MTNL, if your money has not grown or if it has degrown, it is because of these reasons. You have invested in a sector which is not growing, or the company which has not brought in innovation in their products and services, so which have not grown. So again in HUL, see, I mean, look at the way as the consumption improved,
the HUL brought in a lot of innovation in their personal products, so that's how their market capitalization has grown from 8,000 to 5 lakh crores. And again, Tata Steel, which was the 5th largest company, which is now at a 43. Again, it has grown because it has sustained, because it has market cap has grown to from 7,000 to 38,000 crores. So that's how about the top 50, top 5 companies of 1995 in current market conditions. Let me just take about what has happened from then. So the poverty in India at that time, the population of 45% of the population was below poverty line. Whereas currently, if you look at, around only 22% of the population is below poverty line. So the incomes are rising, consumption is increasing, because the people have money to buy things, consume things. So that's helping companies to grow, bringing new innovation into the products line. So that has been the success story of, I mean, the why companies are growing. And again, people who incomes have grown. There is in every one person in every four rich people, I mean, who can buy into a lot of luxury things. So which is actually helping India to become one of the leading consumption market. So these are the decaying industries from the past. So if you see, metal industry has been degrowing. That's where you have seen the company which were some of the largest in the industry have come down. And again, PSU, I think the government job is into administration, but I think they continue to run in, they will not be able to do a profitable business, because they will have other interests rather than making a profitable companies. So again, telecom, it's actually only in public sector by the telecom, which is actually, it should not be coming in telecom in the decaying industries, but only in the public sector companies have actually degrown, but the private has actually been growing. And again, there is a lot of innovation coming into telecom, so it should not be there actually here, but only because of some PSUs it is reflecting there. Again, just to begin with, I think the earlier the market was used to be on dominated by primary industries. So primary industries like from mining, agriculture, forestry. So these were the industries which were the companies which were growing earlier. But gradually you started seeing a lot of manufacturing started again, secondary companies started coming in. Again, now you will see the tertiary industry, which is like IT consulting, banking, many other industries which are coming into this industry, which is showing a very good growth, better than the primary industries. So I would like to present to you today's largest 21 companies by market capitalization, which you think are I think hope everybody can see this. These are the top 21 companies out of Nifty 50, which are the largest in terms of market capitalization. So Reliance, as I was telling, is one first company in India which has crossed more than 10 lakh market capitalization. As I said, I mean, it did not limit themselves to only oil and gas. They diversified their business, so that has helped them to grow their market capitalization. Again, so we don't see any of the primary the companies from primary industries. So you are seeing Reliance. Again, it is diversified. IT consulting, which was nowhere there in the 1995, but today it has a market capitalization of 82 lakh crores. So, sorry, 82,000 crores. Again, HDFC Banking. Second. Yeah. And HDFC Bank, which is in the third highest, which has a market capitalization of 56,000 crores, the number one in banking. Hindustan Lever has maintained its the fourth position in consumption category industry. So again, IT consulting, I think everybody agrees that it's growing industry. See, you already see among the top 21,
multiple companies reflecting from IT consulting. Again, TCS, Infosys. You will see some more companies from there. Yeah, HCL Tech. So again, Wipro. So these are the 21 companies which I'll just. So these are the companies. I think Piyush, I think you want to add. I think before I take up the booming industry. Perfect. And, Perfect. Yeah. So these are okay. Great, sir. So the research, our analysis says that the booming industry from the top 21 companies, IT consulting is one of the booming industry. I think you have already seen the companies which are among the top 21 companies where market capitalization is growing great, and their growth is also above the industry average, not the Nifty 50 average. Again, banking, you see HDFC Bank. Again, when I talk about banking, I think you are seeing HDFC Bank, Kotak Bank, ICICI Bank, SBI. So these are the again Axis Bank. So these are the banks which are actually featuring in top 21, which will continue to grow as the India grows. So these are the companies will continue to grow. Again, in finance, which is like one of the fifth largest, HDFC. So again, it is reflecting in finance and home. They majorly into home finance. Again, we have a Bajaj Finance there, which Vijayji was talking about. So again, in the insurance is also another sector which is coming up, so which we are covering in emerging. So you are seeing already departmental store insurance, so are coming up in emerging industries. So automobiles also we have a companies. I think what is the difference between Hanumeshji, this boom industry and emerging industry? You have sir, booming two lists. Sir, the booming industry are the one which is actually currently doing well, leading the market. Emerging are these currently it is in the growth stage and which will take the lead in the coming days. Okay. So I think companies from department store and insurance have already entered into Nifty 50. Yes, sir. Okay. Which one has entered from department store? Yeah, DMart is already there. I think DMart is already and I think 17th number. Okay. But Hanumeshji, in real Nifty 50, DMart is not there. But why in your list DMart is there? It is because of the market capitalization, sir. Okay. Then what does this Nifty 50 look for? They do not look for market cap. Maybe you'll have to. Maybe you will have to clarify, sir. Okay, that's Nifty 50 is looking for free float market cap, right? Okay. And DMart is having 80% promoter share. So that is the reason still DMart is not in Nifty 50. Otherwise, your list is perfect list, Hanumeshji, right? Got it, sir. I think clarified. Yeah. So don't go for this Nifty 50. Yeah. So I think that the free float is actually restricts certain companies to come and reflect in the Nifty 50. But this is complete market capitalizations, which clearly shows which are the companies, and it gives a more clarity than whether it is a complete the shares are there in the free float or not. It doesn't stop us. You can see it here also that TCS is at number 2 and Infosys is number 6 in your list. In real term, Infosys, this is real truth that TCS is having number 2 position of India, right? And Infosys at number 6. But if you will see Nifty 50, then TCS is at 5th position and Infosys is at 3rd position. That is not right. Right? Because TCS is having 80% promoter shareholding while Infosys is having 30%. Right now, so your list is more perfect than original Nifty 50. Okay.
Absolutely, sir. This gives a more clarity carry to, on, carry on. especially we are investors. Yeah. For us, this gives more clarity. Okay. And so looking at this, I think we are prepared. I mean, what is that we are expecting from these companies? So I think the closest comparison we see is that the China has been growing. So I think 2 decades back, I think China also was in the similar condition where they were, I think, having one or less than one company which was into more than 10 lakh market cap. But I think today they have more than 10 companies which are more than 10 lakh market cap, 10 lakh crores. So this is what we also expect in the 2030, that these companies which will from these industries are expected to cross 10 lakh market capitalization. 2, 3, 4, 5 companies, TCS, Reliance, HDFC Bank, HDFC, Kotak Bank. These are the companies which we see that, as per our research analysis, that we see these companies which will go beyond 10 lakh crore in terms of market capitalization. And the companies Anumeshji, which let are, me add here. Anumeshji, please, sir. let me add here, Yes, as you have said that 2 banks will be entering into 10 lakh crore elite club of India right now. See, if many of you would have seen budget of India this year, and before budget, the presentation gives estimates of budget, right? If you have seen that estimates, they have clearly said that India is right now not having too much big banks, because largest bank is HDFC Bank from private, just having 1.5 lakh crore sales. It is not big. Actually, India should have sales of around 10 lakh crore from our bank. But why? Because our GDP per capita is low. But in 2030, we are going to see 3 to 4 banks coming into 10 lakh crore. So your data get matched. Your data is matching with what they have said, right? Good going. Clearly see that Kotak Bank and HDFC Bank will emerge as the front runners with market capitalization 10 lakh and above. Absolutely. Right. And again, the companies which is expected to cross 5 lakh market cap are the HCL Tech, DMart, and Bajaj Finance. Again, from finance, departmental store, IT consulting. So these are the companies which we see that they will cross 5 lakh market capitalization. And again, the companies which will cross 2 lakh market capitalizations are Asian Paint, Titan, Sun Pharma, Power Grid, HDFC Life. This is also again a new from the insurance industry or investment. So, and Bajaj Finserv, Maruti, Adani Port. So these are the companies which are expected to cross 2 lakh crore market cap. So that is what we are seeing. And again, there is a Britannia, Bajaj Auto, Shree Cement, UPL, Ultra Cement. So there are few companies from infra also, I mean, are going to emerge as among the top 21. Ultra Cement, Shree Cement, Adani Ports. Adani Ports comes under infra, and Power Grid. So these are the companies which will also, I mean, grow significantly. So, Piyush, anything you want to add? I think. Yeah, so see, as per your data, today there are several companies in Nifty 50 which are not having even market cap of 75,000 crore. 1 lakh is far away. But in 2030, we will not see any company which will be below 1 lakh crore and it will be in Nifty. All the companies in Nifty 50 would be more than 1 lakh crore company, right? Because see, 2010, when we were seeing at that time, the lowest companies, see the data which you saw, थोड़ा ऊपर ले जाओ तो अनुमेश जी, जो आपने 1995 का डेटा बताया, देखो क्या मार्केट कैप था कंपनियों का, ये राजा है. दिस वाज नंबर 1, सेल 15,000 करोड़, है ना. हम 20 साल पहले का देखे, रिलायंस 2000 करोड़ का धंधा करता था, 10 लाख करोड़ 6.5 लाख करोड़ पहुंच गया है. HDFC Bank was doing 2,000 crore turnover. They are doing 25,000 crore profit. So we are going to see huge potential, huge growth in coming 10-20 years, and wealth is there.
तो आई विल लुक ऑन फॉर योर डेटा। ये जो पूरा जो डेटा बनाया है, ये सारे लोग जो आज मीटिंग में है इनको हम भेज भी देंगे, बराबर है, सो दैट दे कैन जस्ट टैली दिस डेटा। ओके, Surely, sir, so that they also get benefited. ओके। And I तो think आपकी जो कंपनी है ना अनुमेश जी, द डेटा विच यू हैव शेयर्ड विथ अस ऑल आर फ्रॉम निफ्टी 50। तो correct. ऐसा भी तो होगा कुछ छोटी कंपनियां इनकी जगह ले लेगी निफ्टी 50 की? Yeah, absolutely, sir. Isliye I think I have my colleague Asim. ओके, His team has worked on the next 50 companies which will outperform and the enter the Nifty 50. So I think Right. I request Asim and the team to take over from here, and you can give us the Okay. names which will enter into the Nifty. Right. So it was good talking with you, Anumesh ji. Wonderful, wonderful Thank work. you, Huh? Really good. Right. So let Thank me you. move to Asim. हेलो सर, Yeah, गुड Asim? इवनिंग। Yes, good evening. Good evening. Your voice is high clear. एकदम clear है आपका आवाज, है ना? ओके सर, प्रेजेंटर बना दीजिए सर, मैं अपने कंप्यूटर से शेयर करूंगा। Yes, yes. एक मिनट। Okay. So now Ashim, you are the presenter. अशीम जी, आप शेयर कर रहे हो तब तक थोड़ा आपका और आपकी टीम का कुछ डिटेल बता दो। सब कहाँ से है, सबने कैसे काम किया है ना? ओके सर। हम सब लोग जाने तो सही, जिनका डेटा देख रहे हो वो कौन लोग हैं? बिल्कुल सर। क्या? तो सबसे पहले तो जितने भी लोग यहाँ जुड़े हैं उनको मैं अपने प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली में स्वागत करता हूँ। और मैं सबसे पहले पीयूष सर को भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिनके गाइडेंस में हम लोगों ने एक टीम की तरह वर्क करके कुछ रिसर्च करने की कोशिश किया है और कुछ कंक्लूजन में भी पहुंचे हैं, जो कि हम अभी आगे आपको दिखाएंगे कि हमने क्या रिसर्च किया है, हमारी टीम ने क्या रिसर्च किया। तो मैं आपको सबसे इसके बाद अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। मैं मोहाली से हूँ, अशीम कीर्तनिया मेरा नाम है और मैं गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करता हूँ। और फिलहाल मेरा मतलब फाइनेंशियल बैकग्राउंड से कुछ भी नहीं है कि मैं कोई सीए हूँ या फिर ऐसे वैसा कुछ भी नहीं है। मैं बिल्कुल मतलब शेयर मार्केट से ऐसा कुछ मतलब है ही नहीं, मतलब इस सेक्टर से मेरा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मैंने सीखा है, सारा कुछ पीयूष सर से ही सीखा है और आज कॉन्फिडेंट हूँ कि जैसे कि आपको टीवी में जैसे सुनने को मिलता है कि कौन सा शेयर कैसा है, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट फ्रॉम इट फैमिली के मेंबर भी ऐसा इंटरव्यू दे भी सकते हैं, इतना काबिलियत आ गई है। और उसके बाद मैं अपने टीम मेंबर जो है अमोल जी चेन्नई से, देन श्रीनिवास जी बेंगलोर से, असीम जी दिल्ली से, मिलिंद जी मुंबई से और प्रवीण जी मुंबई से, इन लोगों का भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि हम सब ने मिलकर एक टीम वर्क किया और बहुत सारा रिसर्च किया और उसमें काफी कुछ आपको मिलेगा अभी आगे चल के। तो सर मैं स्टार्ट करूं यहाँ से आगे? यस, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा। आपकी जो पूरी टीम है इसमें कोई भी ऐसा है जो फुल टाइम स्टॉक मार्केट है कि सब लोग पार्ट टाइम है, अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं? नहीं सर, ये सर आप लोग को, आप मतलब सभी को बताना चाहूंगा कि जितने भी यहाँ पे हम मेरे साथी है, डिस्टर्बेंस आ रहा है थोड़ा, तो मैं कर देता हूँ। कर दिया आशिम, क्लियर, डिस्टर्बेंस क्लियर है? ओके सर, ओके सर। तो मैं ये बताना चाहूंगा कि यहाँ हम मेरे टीम में जितने भी मेंबर है कोई भी मतलब इस फील्ड से नहीं है, फाइनेंस बैकग्राउंड से नहीं है, सब लोग कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब करते हैं और जितना भी रिसर्च किया है वही जो खाली टाइम बचता है जॉब के आने के बाद उसमें किया है। ऐसा नहीं कि हम लोगों ने दिन भर रिसर्च किया, ऐसा कुछ नहीं है। जो शाम को आके एक दो घंटे लास्ट वीक से हमने भी तैयारी किया है और ये एक वीक के अंदर हमने ये पूरा रिसर्च किया है सर। ओके, गुड गुड, कैरी फॉरवर्ड। ओके, अब मैं अपना जो रिसर्च है उसको स्टार्ट करने से पहले हनुमत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। हनुमत जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा हनुमत जी, आपको थोड़ा आपका जो लार्ज कैप आपने कंपनी अभी निफ्टी 50 के बारे में डिस्कस किया है उसको थोड़ा संभाल के रखिएगा, क्योंकि आपके कुछ ऐसे कंपनी है जिसको मैंने जो रिसर्च किया है मेरी कंपनी आपकी कंपनी को रिप्लेस करने वाली है कुछ आने वाले समय में, तो ये आप ध्यान रखिएगा हनुमत जी। अब यहाँ मैं स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले देख लेते हैं निफ्टी 50 का। तो हनुमत जी ने पूरा एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट 50 मतलब क्या है, जो निफ्टी 50 में आने वाली हो वो वाली कंपनीज है। उसमें
यदि देखें नेक्स्ट 50 का मार्केट कैप कितना है, तो नेक्स्ट 50 का मार्केट कैप अभी है 23 लाख करोड़, जो कि निफ्टी 50 के टॉप 3 जो कंपनीज है उससे भी कम है। मतलब टॉप 3 कंपनीज के जो मार्केट कैप है उससे भी कम मार्केट कैप क्या है अभी नेक्स्ट 50 का है। मतलब ये है कि अभी बहुत छोटा है। तो ये ध्यान हमें रखना चाहिए कि जो निफ्टी 50 में आज मतलब बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है, उनकी भी कभी ऐसी स्थिति थी, मतलब वो भी बहुत छोटी थी, छोटे छोटे से बड़ा बना है। और यहाँ पे मैंने जितने भी कंपनी का यहाँ पे रिसर्च आपको मिलेगा, ये सारे कंपनीज, मैंने पूरे निफ्टी 50 का पूरे कंपनीज नहीं लिया है, ये जो कंपनीज है अपने अपने सेक्टर का फर्स्ट सेकंड थर्ड हो सकता है, ये जितने भी कंपनीज है। बट ये जो कंपनीज है इनका जो ग्रोथ रेट है बहुत ज्यादा है, लो डेट से और हाई मार्जिन से ये लोग बिजनेस कर पा रहे हैं, इसलिए हमने इतने सारे कंपनीज कंसीडर किया है। और एक चीज देखे यहाँ पे, यदि देखे नेक्स्ट 50 का जो मार्केट नेक्स्ट 50 का यदि CAGR ग्रोथ देखे प्रॉफिट एंड सेल्स का, वो एवरेज जो ग्रोथ है वो कितना है 15%। बट मैंने जो यहाँ पे कंपनीज ली है वो क्या है 15% से वो है, मतलब ये बोल सकते हैं कि 20% के लगभग जितने भी कंपनीज ग्रोथ कर रही है 20% या फिर उससे ज्यादा, उन कंपनीज को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। अब कौन कौन सी कंपनी यहाँ पे आई है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये जो ग्रोथ के मामले में है कौन कौन सी कंपनी बहुत अच्छा ग्रोथ कर पा रहा है, वो कंपनीज ये है उनका लिस्ट। सबसे पहले आता है बंधन बैंक। बंधन बैंक जबरदस्त ग्रोथ कर रहा है। ये कौन सी इंडस्ट्री से आता है, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक से आता है। मतलब ये क्या है, स्मॉल है, मतलब स्मॉल फाइनेंस करता है, और ये जो इंडस्ट्री है बहुत ग्रोथ करता है, मतलब कर रहा है अभी। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों, किसी कंपनी को हम ये नहीं बोलेंगे कि ये कंपनी ग्रोथ कर रहा है, हमें क्या देखना है कौन सा सेक्टर ग्रोथ कर रहा है। तो जो स्मॉल फाइनेंस बैंक जो सेक्टर है ये बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है, इसलिए बंधन बैंक कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रहा है। उसके बाद मदरसन सुमी देखिए, मदरसन सुमी ऑटो एंड एंसिलरी जो सेक्टर है उससे आता है, इंडस्ट्री से आता है। अभी यदि 2 साल की बात करें, लास्ट टू ईयर्स, तो थोड़ा सा इस सेक्टर में थोड़ा डाउन है। बट यदि लास्ट 20 ईयर्स की बात करूं, लास्ट 2 डिकेड की बात करूं, तो मदरसन सुमी ने जबरदस्त ग्रोथ दिखाया है। इसी तरह अदानी ट्रांसमिशन इंफ्रा से है, ये भी बहुत जबरदस्त ग्रोथ दिखाया है। फिर एक डीमार्ट आता है जो कि इमर्जिंग सेक्टर से है, डिपार्टमेंटल स्टोर से। अब हनुमेश जी ने जैसा डिस्कस किया था कि जो ये है इमर्जिंग सेक्टर, मतलब डीमार्ट तो ऑलरेडी निफ्टी 50 में है, मतलब फुल मार्केट कैप के अकॉर्डिंग ये ऑलरेडी निफ्टी 50 में है। बट उस वहां पे क्यों नहीं है, वो भी सर ने एक्सप्लेन किया कि फ्री फ्लोट जो मार्केट कैप होता है वो देखा जाता है। तो डीमार्ट तो ऑलरेडी है, इसका भी जबरदस्त ग्रोथ है। और यदि देखे तो जैसे कि इन रिलायंस इंडस्ट्री हो गया, वो अभी डाइवर्सिफाइड है। और रिलायंस रिटेल का जो मार्केट कैप है, मतलब रिलायंस रिटेल जो बिजनेस करता है वो करीबन 1.5 लाख करोड़ का बिजनेस करता है, और डीमार्ट अभी कितना कर रहा है 20,000 करोड़। तो जब रिलायंस रिटेल जब भी लिस्टेड होगा तो कहीं ना कहीं डीमार्ट से बड़ा वो कंपनी होगा, ये आपको ध्यान रखना है। इंडिगो एविएशन सेक्टर से है, एयरलाइन सेक्टर से, जिसमें जबरदस्त ग्रोथ है। देन मुथूट फाइनेंस वाली कंपनी है, इसमें भी जबरदस्त ग्रोथ है। फिर कंजम्पशन में देखिए, कंजम्पशन में कई कंपनीज आ गई। कौन कौन से आ गई, पेज इंडस्ट्री, गोदरेज कंज्यूमर, यूबीएल एल्कोहल से है। इसी तरह नॉन एल्कोहलिक बेवरेज में भी कुछ कंपनी ऐसे हो सकता है जो आगे चल के बढ़े बने। तो कहीं ना कहीं यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है, कंज्यूमर जो सेक्शन है दोस्तों, कंज्यूमर, एयरलाइन, यहाँ पे इन सब सेक्टर में बहुत ज्यादा कंजम्पशन होने वाला है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे कि हनुमान जी ने बताया है कि 4 में से 1 पर्सन क्या है, रिच है। जब भी मतलब जो है, जैसे कि हमने देखा कि जो पॉवर्टी लाइन है, अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि जो पॉवर्टी लाइन है कि पहले कितना था 45%, अभी कितना है 22%, मतलब ज्यादा लोग क्या है अमीर बन रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि लोग बाग अपने सबसे पहले जो कमाते हैं उससे अपना नीड पूरा करते हैं, जो जरूरत की चीज होती है उसको पहले खरीदते हैं। बट जैसे जैसे अमीर बनेंगे लोग बाग तो क्या करेंगे, कहीं ना कहीं वो प्रीमियम प्रोडक्ट की ओर जाएंगे। तो वही चीज है कि यहाँ पे कंज्यूम जो अच्छे जैसे पेज इंडस्ट्री हो गया, गोदरेज कंज्यूमर, यहाँ पे ये लोग ज्यादा कंज्यूम करने वाले हैं। फिर इंश्योरेंस एक सेक्टर है जो अभी नया आया है, उसमें SBI लाइफ हो गया, इस सेक्टर में भी बहुत हाई ग्रोथ है। IGL यूटिलिटी से है। अरविंदो फार्मा सेक्टर में देखे तो अरविंदो फार्मा, डिवीज लैब, इन दोनों में काफी अच्छा ग्रोथ है। फिर बायोटेक्नोलॉजी में देखिए बायोकॉन है। इंटरनेट सेक्टर भी एक जबरदस्त हाई ग्रोइंग सेक्टर है, जिसमें कि नौकरी जो है ये अभी निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी नहीं था, बट ये अभी जस्ट कुछ दिन पहले, मतलब कुछ दिनों पहले ही इंटर हुआ है। तो क्यों इंटर हो रहा है, क्योंकि इसका जो ग्रोथ है 30% से ज्यादा से सेल्स और प्रॉफिट ग्रोथ कर पा रही है, इसी कारण ये क्या अभी नेक्स्ट 50 में आ चुका है। इसी तरह इंश्योरेंस का देखिए यहाँ पे और एक आ गया है कि ICICI GI,
देन हेवल्स कंजम्पशन से, पीडीलाइट कंजम्पशन से। तो ये कुछ कंपनी है जो कि अच्छा ग्रोथ है इन कंपनीज में। अब ये इसमें से ऐसा भी नहीं है कि दोस्तों कि ये जितने भी कंपनी यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, ये सारे निफ्टी 50 में जाएंगे, क्योंकि इसमें से बहुत सारी कंपनीज है, क्या है, बहुत छोटी है अभी, और उसका लेकिन उनका ग्रोथ बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने यहाँ पे इंक्लूड किया है। इसमें से कुछ कंपनी डेफिनेटली निफ्टी 50 में जाएगा। अब एक लिस्ट आपको आगे मिलेगा, ये जो लिस्ट हमने तैयार किया है ये वो लिस्ट है दोस्तों। इस लिस्ट में आपको क्या मिलेगा दोस्तों कि इस लिस्ट में जो कंपनी अच्छा ग्रोथ कर पा रही है, लो डेट है, मार्जिन अच्छा है और मार्केट कैप भी बहुत अच्छा है, मतलब बिजनेस बहुत ज्यादा बड़ा है इनका। तो 2030 के हिसाब से हमें देखें मार्केट कैप डिपार्टमेंटल स्टोर कितना हो जाएगा, 5 लाख करोड़ से ज्यादा हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी तो निफ्टी 50 में आने वाली है। उसके बाद एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से इसका भी 5 लाख करोड़ से ज्यादा होगा। गोदरेज कंज्यूमर कंजम्पशन सेक्टर से इसका भी 2 लाख करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप हो जाएगा, 2030 तक हम ये देख पाएंगे। इसी तरह इंश्योरेंस से आईसीआईसीआई, स्मॉल फाइनेंस से बंधन बैंक 2 लाख करोड़ से ज्यादा बिजनेस कर पाएगी, मार्केट कैप बन जाएगा। देन एचडीएफसी एएमसी, एएमसी में भी अभी आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं, म्यूचुअल फंड की ओर जा रहे हैं। तो म्यूचुअल फंड की ओर जा रहे हैं मतलब इन्वेस्टमेंट की ओर जा रहे हैं। तो इन सब कंपनी जितने एएमसी कंपनीज है उनको फायदा होने वाला है। देन एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस से अगेन, पीडीलाइट कंजम्पशन से, डिविजिलाइट और ऑरबिंदो फार्मा सेक्टर से हो गया। हेवेल्स कंजम्पशन से, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ये भी कंजम्पशन से है, बायोकॉन बायोटेक्नोलॉजी से, इंडिगो एयरलाइन से, नौकरी इंटरनेट और पेज इंडस्ट्रीज कंजम्पशन से है। आईआरसीटीसी, आईआरसीटीसी देखिए अभी अभी लिस्टेड हुआ है आपको पता है, लेकिन ये देखिए कहाँ बिलोंग करता है, ये निफ्टी 200 को है। तो कहीं ना कहीं ये जो छोटी कंपनी है ये बहुत बड़ी कंपनी बनने वाली है। देन यूवीएल देखिए, यूवीएल कंजम्पशन से है, ये कहाँ से है, 200 से, निफ्टी 200। फिर इसी तरह जुबिलेंट फूड मतलब ऑर्गेनाइज रेस्टोरेंट में अभी ज्यादा पेनिट्रेट नहीं है हमारे इंडिया में, बट आने वाले समय में हम देखेंगे कि जुबिलेंट फूड भी 2030 तक 75,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप हो जाएगा, ये भी निफ्टी 200 से आता है। डॉक्टर लालपत लैब, इनका भी 50,000 करोड़ से ज्यादा का मार्केट कैप हो जाएगा 2030 तक, ये हेल्थ केयर से आता है और ये कहाँ बिलोंग करता है, निफ्टी 500। तो ये सारे कंपनीज है जो कि अच्छा ग्रोथ है। एक चीज आपको और बता देना चाहूंगा कि यहाँ से आप देखेंगे 1 लाख से ज्यादा कितने सारे कंपनीज है जो कि 1 लाख से ज्यादा का मार्केट कैप हो जाएगा 2030 तक। और अभी यदि बात करूं कि निफ्टी 50 का जो क्राइटेरिया रहता है कि जो मार्केट कैप है वो 50,000 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए और जो ग्रोथ है वो 3 महीने तक सस्टेन करना चाहिए, तभी जाके क्या होता है, निफ्टी 50 का रास्ता तय होता है। मतलब एकदम खुला होता है कि आपका यदि 50,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप है तो आप निफ्टी 50 में इंटर हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ देखिए बहुत सारी कंपनीज है जिनका कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा होने वाला है। तो आने वाले समय में इनमें से कई कंपनी को हम निफ्टी में देख पाएंगे। तो ये रहा मेरा पूरा कंपनीज का लिस्ट हनुमेश जी, जो कि आपके कंपनी को टक्कर देने वाली है। तो पीयूष सर, अब आप यदि कुछ क्वेश्चन और कुछ यदि रह गया हो तो आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं सर। अशिम भाई, पहला तो आपने और हनुमेश जी ने दोनों ने बढ़िया प्रेजेंटेशन दिया। हाँ, आपने कहीं सिखाया हुआ है क्या, पहले कहीं शिक्षक थे, पढ़ाने का काम किया है? यस सर, मैं तो टीचिंग लाइन में था सर पहले। अच्छा, ओके, अच्छा समझाते हो। गुड गुड एक्सप्लेनेशन, बहुत अच्छा रहा आपका ये पूरा डेटा। अशिम जी, थैंक यू सर। यस सर। 2010 में जब मैं रिसर्च करता था उस समय मेरे को कई कंपनियां ऐसी थी, जैसे अल्ट्राटेक है, श्री सीमेंट है, एशियन पेंट भी इनफैक्ट उस समय निफ्टी 50 में नहीं थी। तो मैंने बहुत लिस्ट बनाया हुआ था कि ये सब कंपनी निफ्टी 50 में होगी। देखो आज उसमें से बहुत सी कंपनी निफ्टी 50 में आ गई। अब ये लिस्ट आपने बनाया है आज, ध्यान रखना 2030 रीचेक करना, इसमें से कितनी ही कंपनियां निफ्टी 50 में आ गई होगी। और आपने जो सबसे आखिर में बताया आईआरसीटीसी निफ्टी 200 में है, ये तो बहुत छोटी कंपनी है। आपने जैसे सेल को देखा नंबर 1 से 200वें नंबर पे आते हुए, वैसे ही इन कंपनियों को देखोगे 200 नंबर से निफ्टी 50 में एंटर होता हुआ आने वाले 10-12 साल में। राइट, गुड गुड, वंडरफुल, थैंक्स। बढ़िया। हम क्वेरी सेशन एक रखेंगे आशिम जी, तो लोगों को जो कोई क्वेरी होगी वो क्वेरी सेशन में आपको पूछेंगे, बराबर है? ओके 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 सर। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद सबको।
आशिम जी और उनकी पूरी टीम को। समय की खेत की वजह से हम पूरे लोगों से बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन इट वॉज अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन बाय ऑल ऑफ यू। नाउ अब हम तीसरे चरण पे जाएंगे, जहां पे प्रॉपर लिस्ट हमें मिले कि सही में कौन सी इंडस्ट्री ग्रोथ करने वाली है, कौन सी कंपनी आगे बढ़ने वाली है। तो वहां ले जाने के लिए मैं मिलिंद भाई को आमंत्रण देना चाहूंगा। मिलिंद भाई, आर यू ऑनलाइन राइट नाउ? यस सर, यस सर। या अरे एकदम क्लियर आवाज है मिलिंद भाई आपका भी, वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू। या मैं आपको प्रेजेंटर बना दूं मिलिंद जी? प्लीज सर, प्लीज। या ओके, सो डॉक्टर मिलिंद बिडवे, यू आर प्रेजेंटर नाउ। यस सर। मिलिंद भाई स्क्रीन, आपकी, ओके। तो ये दोनों आपकी टीम थी, देखो टीम 1 टीम 2 दोनों आप ही की टीम थी, और Yes, आपने उनके डेटा को खाली सजाया है कि यस नहीं? सर, और सजा के फाइनल लिस्ट बनाया है। क्या किसी ने आपका साथ दिया है ये लिस्ट बनाने में? संदीप वागुले जी और मैंने दोनों ने हमने ये बनाया है। बट हमने पूरा जो डाटा यूज किया है वो हनुमेश जी का और आशिम भाई जी का है। तो इन्होंने सच में बहुत मेहनत करके जबरदस्त डाटा प्रिपेयर किया है। वही डाटा से हमने थोड़ा रिफाइनमेंट करके अगली कंपनियां बनाई है। ओके, चलिए आप अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हो, आपने क्या प्रिपेयर किया है? गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मिलिंद बिडवे, आई एम फ्रॉम पुणे, एंड दिस पार्ट ऑफ प्रेजेंटेशन इज प्रिपेयर्ड बाय संदीप वागुले जी एंड मैंने बनाया है। सो आई एम एसोसिएटेड विद प्रॉफिट फैमिली फ्रॉम लास्ट 2.5 years। तो हनुमेश जी और आशिम जी, आप दोनों ने जो डाटा बढ़िया बनाया है उसके लिए आप दोनों का थैंक यू, क्योंकि ये बहुत हार्ड वर्क था एंड सच में टफ चीजें थी, क्योंकि इतना सारा रिसर्च करना 100 कंपनियों का मुश्किल था। तो जैसा कि हनुमेश जी ने हमें बताया, आज अगर हम मार्केट कैप ले तो 2020 का अगर हम कंडीशन देखें तो 2020 में जो टॉप 21 कंपनीज है उसका अगर हम एनालिसिस करें तो जैसा आप इधर देख रहे हो, मैंने रिलायंस को क्लिक किया है, तो 1 नंबर पे रिलायंस कंपनी है। हमें आज भी पता है कि रिलायंस का जियो और उनका रिटेल बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। सो रिलायंस का मार्केट कैप आज सबसे बढ़िया है। 2 नंबर पे टीसीएस कंपनी आती है, 3 नंबर पे एचडीएफसी, यूनिलीवर, एचडीएफसी लिमिटेड, देन इन्फोसिस, भारती एयरटेल। इस तरीके से 2020 में टोटल 21 कंपनियां आती है जिनका ग्रोथ बहुत अच्छा आज तक का है। लेकिन अब अगर पूछोगे कि अगले, आज का तो ठीक है, 2030 में क्या होने वाला है, सबकी क्वेरी और सबको इम्पोर्टेंट वही चाहिए कि 2030 में क्या होने वाला है। तो जैसे ही ये डाटा का हमने रिफाइनमेंट किया और उनका ग्रोथ देखा, बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रोइंग सेक्टर है। ये सभी कंपनियां ग्रोइंग सेक्टर से आती है, इसमें आपको कोई भी कंपनी डी ग्रोइंग सेक्टर में से नहीं मिलेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रोइंग सेक्टर है। तो ग्रोइंग सेक्टर का जो ग्रोथ है, प्रॉफिट ग्रोथ एंड मार्केट कैप, उसके हिसाब से हमने कंपनी सिलेक्ट की है। उसमें अगर आप देखोगे तो 2030 में हमारा जो कैलकुलेशन है, जैसा हमने सीखा है पीयूष सर से और प्रॉफिट फैमिली में, उस हिसाब से टीसीएस 1 नंबर की कंपनी रहनी चाहिए, मार्केट कैप एंड विद प्रॉफिट, देन एचडीएफसी बैंक एंड रिलायंस। लेकिन इसमें सबसे बड़ी एक चीज है कि रिलायंस का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। अगर आप ऑब्जर्व करोगे, जैसे पिछले 2-3 साल से उनका जियो का अच्छा चल रहा है एंड रिलायंस रिटेल डीमार्ट से 5 गुना बड़ी कंपनी है। तो हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि रिलायंस कभी भी एचडीएफसी बैंक और टीसीएस को टक्कर मार के 2030 की सबसे बड़ी कंपनी भारत की बन सकती है, और जो मुकेश अंबानी का ड्रीम भी है। तो हमें इस पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। देन अगर हम देखेंगे 4 नंबर पे आती है हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑलरेडी बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है, लेकिन हमें उसका इंडियन वर्जन जो है, मतलब वो सेक्टर की जो इंडिया की कंपनी है, गोदरेज कंज्यूमर सीपी, उस पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि गोदरेज कंज्यूमर सीपी का भारत में, बांग्लादेश में, श्रीलंका या पड़ोस में विस्तार काफी तेजी से हो रहा है। अगर हम सेल्स ग्रोथ कंपेयर करें तो हम गोदरेज सीपी को देखेंगे कि हिंदुस्तान यूनिलीवर से उसका ग्रोथ रेट बहुत फास्ट है, लेकिन वो हिंदुस्तान यूनिलीवर इतनी बड़ी बन चुकी है कि उसके नजदीक जाना उसके लिए थोड़ा टफ है। लेकिन एज ए इन्वेस्टर अगर हमें अच्छे पैसे कमाने हैं तो हम गोदरेज सीपी को भी ध्यान में रखना चाहिए हमें। देन एचडीएफसी लिमिटेड करके है, भारती एयरटेल 6 नंबर पे है, अगेन कोटक बैंक है। तो भारत 2030 में अगर आप पूछोगे कि प्राइवेट बैंकिंग सेक्टर में सबसे बढ़िया 2 कंपनी कौन सी रहेगी या टॉप की रहेगी बैंक्स, तो उसमें एचडीएफसी बैंक
कोटक बैंक और 3 नंबर पे आईसीआईसीआई बैंक आ सकती है। तो हमें इसका भी ध्यान रखना होगा। वैसे ही अगर हम देखें 2030 में, तो 2030 में आईटी सेक्टर में टीसीएस, देन इन्फोसिस, ये कंपनियां हमें अच्छी लगती है। एचसीएल टेक भी बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रही है। उसके बाद जो डायमंड है एक्चुअली वो बजाज फाइनेंस है। जैसा कि हमने देखा बजाज फाइनेंस पिछले 20 साल से बहुत अच्छा ग्रोथ कर रहा है एंड अमेजिंग ग्रोथ स्टोरी है उसकी, बजाज फाइनेंस की। और अभी भारत की शुरुआत भी नहीं हुई है, क्योंकि भारत का जो जीडीपी है जैसे सर ने बताया वो अभी $2000 है, तो वो $10,000 होने वाला है। और बजाज फाइनेंस का मेन रोल लेंडिंग का है। और आज जो एनबीएफसी में प्रॉब्लम चल रही है उसमें सबसे ज्यादा फायदा बजाज फाइनेंस को होने वाला है, क्योंकि ये छोटी छोटी कंपनियां धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, क्योंकि उनके पास फाइनेंसिंग के लिए ऑप्शन नहीं रहेगा। और बड़ी कंपनियां छोटी कंपनियों को खाके और बड़ी हो जाएगी, और वो सेक्टर में कंपटीशन भी कम हो जाता है। सो बजाज फाइनेंस इज मोस्ट प्रॉमिसिंग कैंडिडेट इन 2030। इसको हम बहुत बड़ी कंपनी में परिवर्तित होते हुए देखेंगे। देन अगर हम इमर्जिंग सेक्टर में जाए तो डीमार्ट बहुत बढ़िया कंपनी है राधा किशन दमानी जी की, जिन्होंने बहुत अच्छा ग्रोथ किया है। और डीमार्ट का ग्रोथ 30-40% चल रहा है। सो ये एक अमेजिंग स्टोरी हमें लगती है, और डीमार्ट में बहुत बढ़िया ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। लेकिन डीमार्ट के साथ हमें हमेशा ये ध्यान रखना होगा कि रिलायंस रिटेल, जब भी रिलायंस लिस्टिंग करेगी रिलायंस रिटेल का, तो उसका धंधा डीमार्ट से 5 गुना ज्यादा है और प्रॉफिट भी 5 गुना ज्यादा है। तो अगर रिलायंस रिटेल जब भी लिस्टिंग होती है तो हमें डीमार्ट के साथ उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। देन अगर हम आईसीआईसीआई बैंक पे आते हैं तो वो बैंकिंग सेक्टर में है, जैसा मैंने आपको बताया आगे। अगेन अमेजिंग सेक्टर जो है ग्रोइंग और इमर्जिंग। लाइफ इंश्योरेंस का भारत में आज तक रोटी कपड़ा मकान ही चल रहा था, लेकिन अभी लोगों को लाइफ के भी डर लगा रहता है कि लाइफ सिक्योर कैसे की जाए। तो इंश्योरेंस सेक्टर बहुत प्रिमिटिव स्टेज में है भारत में, बहुत छोटी छोटी साइज है कंपनियों का। आगे आने वाला ग्रोथ अगर हम चाइना, यूएसए और यूरोपियन मार्केट से करें तो एचडीएफसी लाइफ का ग्रोथ अमेजिंग है। उसके एनुअल रिपोर्ट्स अगर देखें एंड कंपैरिजन देखें तो मतलब यू कैन इमेजिन कि वो 10-15 गुना आराम से हो सकती है। देन एशियन पेंट जो ओल्ड डार्लिंग है सबकी और आज भी है, एशियन पेंट का सबसे स्टैंडर्ड एंड कंसिस्टेंट ग्रोथ है। हर एक जो घर है वो अराउंड 10 इयर्स में, अगर आप एनुअल रिपोर्ट पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि ऑन एन एवरेज नए घर के साथ जो पुराने घर है वो 10 साल में रिपेंट वापस हो जाते हैं। तो इसकी जो डिमांड है वो बरकरार है और कंटिन्यूस चालू रहती है। तो एशियन पेंट का बिजनेस कभी भी फेल नहीं होने वाला है एंड ये और बड़ी कंपनी बन जाएगी। अल्ट्राटेक सीमेंट, जैसा भारत का ग्रोथ हेवी चल रहा है उसमें अल्ट्राटेक सीमेंट का यूज काफी सारा होगा सीमेंट का, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग की वजह से अल्ट्राटेक बहुत अच्छा चलने वाला है। देन अगर हम देखें कि व्हीकल सेक्शन में 2-3 साल से बहुत खराब मंदी चल रही थी, तो लेकिन अभी कोविड की वजह से क्या हो गया है कि लोगों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे विश्वास कम हो गया है। एंड एनीवे सेक्टर जब डाउन होता है तो कुछ टाइम के बाद वापस से ये होता है। तो मारुति सेक्टर लीडर है, तो जब भी स्टार्ट होगा ऑटोमोबाइल सेक्टर, और पिछले सभी आंकड़े बहुत ही बढ़िया आ रहे हैं, तो मारुति भी बहुत अच्छा ग्रोथ करेगा। 2030 में ये व्हीकल सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी आज भी है और वो टाइम भी अच्छा ग्रोथ करेगी। देन नेस्ले इंडिया करके है, जिसका हमने किटकैट करके चॉकलेट खाया है, या बच्चों का बेबी मिल्क पाउडर यहाँ से ही आता है, और उसका 90% शेयर नेस्ले का बेबी मिल्क पाउडर में है, और उसकी मोनोपोली है। 3% बेबी शेयर में अबाउट इंडिया का आता है, और इसकी एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, प्रिस्क्रिप्ट ड्रग है, इसलिए कंपनी में दूसरा कोई घुस नहीं सकता है। सो आपको अगर गारंटेड रिटर्न चाहिए अराउंड 15-20%, तो नेस्ले इंडिया इज द बेस्ट कंपनी। और भारत का पॉपुलेशन और बेबी फूड की डिमांड ये दोनों बढ़ने ही वाली है, तो आप नेस्ले को इग्नोर नहीं कर सकते। देन कुछ होल्डिंग कंपनियां हैं, बजाज फिनसर्व में बजाज फाइनेंस भी आती है और बजाज इंश्योरेंस, बजाज अलियांज इंश्योरेंस भी आती है। तो हमें दोनों का फायदा मिल सकता है, एक तो बजाज फाइनेंस की ग्रोथ भी मिलती है और इंश्योरेंस सेक्टर का एडवांटेज भी हमारा हो जाता है, इसलिए बजाज फाइनेंस पे हम पूरा ध्यान रखें। पावर ग्रिड, ये भी बहुत बढ़िया कंपनी, अच्छी तरीके से ग्रोथ हो रही है। टाइटन जो वंस अपॉन अच्छा टाइम अच्छा स्टॉक है, आगे भी इंडिया की ग्रोथ स्टोरी के साथ कंटिन्यू ही रहेगा। अदर अप्रैल्स में टाइटन आता है और फ्यूचर इसका बहुत जबरदस्त लग रहा है। ब्रिटानिया पैकेज फूड में है, ब्रिटानिया ने आज तक अच्छा बहुत बिजनेस किया है, और जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स है जिसमें पैकेज फूड है, वो अभी तक इतना ये नहीं था, मतलब ऑर्गेनाइज नहीं था। बट अभी ये डिसीजेस जिस तरीके से फैल रहे हैं तो लोग प्रीफर करेंगे कि पैकेज फूड जिसमें स्टैंडर्ड कंपनी हो, पूरा पैकिंग हो, साफ सुथरा हो,
तो ब्रिटानिया का बिजनेस पहले भी अच्छा था और अभी बहुत जबरदस्त होने वाला है। तो कोल इंडिया भी एक जबरदस्त कंपनी है। कोल इंडिया में का ग्रोथ भी हम अगर देखेंगे तो जबरदस्त है। उसके साथ अगर हम देखें तो एसबीआई एक गवर्नमेंट कंपनी है एंड उसका भी एसबीआई सबसे बड़ी बैंक है एक्चुअली। तो एसबीआई का ग्रोथ हम बहुत अच्छा देखेंगे, लेकिन फिर भी सेक्टर गवर्नमेंट सेक्टर है तो हम थोड़ा प्रिकॉशन लेके प्रेफरेंस मेरे हिसाब से प्राइवेट बैंक को देना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट का हमेशा रोल प्रॉफिट मेकिंग का नहीं रहता है। दे विल फोकस ऑन के लोगों को हेल्प कैसी हो जाए। तो एनपीएस एसबीआई के काफी सारे बढ़ सकते हैं, बट स्टिल ये सबसे बड़ी बैंक है प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर की। लेकिन अगर आप यहाँ पे वही एक चीज है सेक्टर मिलिंद देखो, भाई, जो आप यस डेटा सर, जो बता यस रहे हो उसमें हाँ कोल सर, इंडिया का आपने 23 नंबर दिया हुआ यस सर, है ना, मतलब 2030 में ये 23rd पे, टॉप 21 में नहीं है। पर कोल नहीं इंडिया नहीं का है आज कौन सा नंबर है? सर, आज एक वो सेकंड निफ्टी ना। 50 में तो है ही, बराबर ना? हाँ हाँ बराबर सर, हाँ वो बहुत बड़ा बदलाव नहीं है, वो निफ्टी 50 में है, निफ्टी 50 में रहेगा। रहेगा राइट, सर। पर यहाँ पे जैसे टाइटन है, आपने 21 नंबर बताया, पर यस सर, टाइटन अभी टॉप 21 में नहीं है मेरे ख्याल से, तो वो नहीं है, वो काफी बड़ा जंप जंप करेगा डेफिनेटली ऐसा सर। है। वो यस सर, ओके, हाँ आगे के लिस्ट में वो दिया ही है सर। राइट, हाँ ओके, हाँ, तो हाँ एंड देन आगे अगेन एसबीआई वगैरह है। तो ये साधारणतः 21 कंपनियां है जो बहुत जबरदस्त चलने वाली है। आगे का जो सेक्शन है हमारा, हमारे जो पुणे के दोस्त है संदीप वागुले जी, वो आपको बताएंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ संदीप वागुले सर को कि वो आके आपको ब्रीफिंग करें। ओके। तो मैं संदीप भाई को प्रेजेंटर बना दूं मिलिंद भाई? संदीप, नो प्रॉब्लम आपको सर, ये स्क्रीन हाँ से। हेलो, आप सुन हाँ सकते हैं अच्छा, सर? हाँ हाँ हाँ, यही क्लियर है स्क्रीन, आपका आवाज हेलो, मिलिंद भाई। हाँ हाँ हाँ, आप तो संदीप ये यही, स्क्रीन रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, स्क्रीन यही रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ओके मुझे ओके, बताओ, मैं कर्सर वैसे मूव कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। नहीं, कोई जरूरत नहीं है कि ओके ओके टू थैंक्स पीयूष सर एंड मिलिंद सर। और जिस तरह से हनुमेश जी और उनकी टीम ने, आसिम जी और उनकी टीम ने काम किया है, तो हमारे सामने तो बड़े चैलेंजेस रखे कि जो फाइनल सुपर 21 चुनना है, तो वो तो चैलेंज का काम है। लेकिन हमने भी कोशिश की है मिलिंद सर के साथ मिलके। तो देखते हैं कि किस तरह से कंपनीज निकल के आ रही है। पहले तो जो इमर्जिंग इंडस्ट्री है, डिपार्टमेंटल स्टोर्स में से डीमार्ट निकल के आ रहा है, जो अभी 17 नंबर पे है, जो कि कैपिटल के हिसाब से है। वो भी 12 नंबर पे मूव करेगा। वो बिग जंपर की लिस्ट में है, जो कि मोर देन 5 पॉइंट्स की तरफ, मोर देन 5 पॉइंट्स या उससे ज्यादा जंप करने वाले स्टॉक है। इन्वेस्टमेंट में एचडीएफसी लाइफ है, जो 21 में अभी फिलहाल परफॉर्म कर रहा है, वो 14 में क्लेम करेगा। अल्ट्राकॉम जो कि सीमेंट सेक्टर में है, 23rd पे वो 16 पे जंप करेगा। इन्वेस्टमेंट में जो बजाज फिनसर्व 25 पे, वो 19 पे आएगा। अभी जो बात हुई थी अदर के बारे में कि टाइटन कितना मूव करेगा, तो इससे पता चलता है कि ग्रोथ के हिसाब से वो 21 पे अभी परफॉर्म कर रहा है, वो 21 पे आएगा। पैकेजिंग फूड जो कि सबका फेवरेट है, जिसमें ब्रिटानिया आ रहा है, तो वो 30 पे परफॉर्म कर रहा है, वो 21 पे 22 पे आ जाएगा। इंश्योरेंस सेक्टर जिस तरह इंडिया में अवेयरनेस बढ़ रहा है इंश्योरेंस के बारे में, तो एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस को देख सकते हैं हम कि 31 पे अभी परफॉर्म कर रहा है, वो 25 को क्लेम करेगा। इंफ्रा में जिस तरह से बात हुई थी कि अदानी पोर्ट्स जो अभी 39 पे परफॉर्म कर रहा है, वो 29 को क्लेम करेगा। और जो मिलिंद सर ने बताया, एक्सप्लेन किया कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का कंपटीटर हमें गोदरेज कंज्यूमर पे ध्यान देना चाहिए, जो अभी 30 पे परफॉर्म कर रहा है, वो 31 को क्लेम करेगा। और केमिकल का अच्छा यानी राजा पीडीलाइट जो 40। संदीप भाई हाँ, एक यस सर, मिनट, हाँ एक यस एक मिनट मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मुझे मिलिंद भाई से रिक्वेस्ट है, मिलिंद भाई थोड़ा इसको सेंटर में ला दो ना, ताकि थोड़ा अच्छी तरह से दिखे। मोबाइल में ये नहीं दिख रहा होगा, जो लोग मोबाइल में सुन रहे हैं, है ना? तो इसको थोड़ा सेंटर में ला देते हैं। यस यस, और जो आपका व्यू है ना 100%, उसे 125 कर देते हैं। राइट 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 राइट, ओके। अब मेरे ख्याल से, सॉरी टू डिस्टर्ब संदीप भाई, या नो नो नाउ नो, यू कैन थैंक्स सर। कंटिन्यू। हाँ, जिस तरह से हम बात कर रहे थे अभी, केमिकल सेक्टर का राजा पीडीलाइट जो अभी 40 नंबर पे है, परफॉर्म कर रहा है, वो 33 नंबर को क्लेम करेगा। जो स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में जो असीम जी ने बताया था कि बहुत बढ़िया ग्रोथ कर रहा है, जो अब 46 नंबर पे है,
वो अनएक्सपेक्टेड कर रहे थे हम कि बंधन बैंक को कंसीडर नहीं कर रहे थे कि इसका परफॉर्मेंस, लेकिन वो भी 34 नंबर पे जंप करेगा। इन्वेस्टमेंट में जो म्यूचुअल फंड के बारे में हम सुनते हैं, इन्वेस्टमेंट के बारे में, तो वो अभी HDFC AMC 49 पे परफॉर्म कर रहा है, वो 35 को क्लेम करेगा। आयशर मोटर टू व्हीलर जिस अभी 50 नंबर पे है, वो 37 नंबर को क्लेम करेगा। जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में ICICI लोम्बार्ड है जो अभी 44 नंबर पे परफॉर्म कर रहा है, वो 39 को क्लेम करेगा। और जिस तरह हमने ये टाइटल दिया है बिग जंप, यानी 5 पॉइंट से ज्यादा जंप करने वाले, वो भी एक चौंकाने वाला रिजल्ट निकल के आया है। जिस तरह का रिसर्च आशीष जी और आसिम जी टीम ने किया है। अदर इलेक्ट्रॉनिक्स जो कि हेवल्स अभी नंबर 70 पे परफॉर्म कर रहा है, वो डायरेक्टली 20 की जंप करके 50 पे आ सकता है। एग्रोकेम में UPL है 73 पे परफॉर्म कर रहा है, वो 60 पे आ सकता है। सर खाली तो संदीप भाई ये निफ्टी 50 में आ जाएगा आपका हेवल्स? हाँ तो आगे चल के निफ्टी 50 में क्लेम करने ही वाले हैं, लेकिन वो किस तरह की जंप कर रहे हैं ये तो सब रिसर्च बता रहा है सर। राइट। जिस तरह से अदर एप्रल्स में है, पेज इंडस्ट्री जो अभी 90 पे परफॉर्म कर रही है, वो 64 पे जंप करेगी। UBL जो कि बेवरेज सेक्टर से है, अभी 83 पे परफॉर्म कर रही है, वो 65 पे जंप करेगी। लेकिन ये कंपनीज अगर ये मेरे सुपर 21 है जो मेरे हिसाब से लगती है, जो हमने मिलिंद सर ने और मैंने उसकी करने की कोशिश की है, लेकिन अगर ये 21 कंपनी परफॉर्म कर सकती है, कोई कंपनी डाउन ग्रोथ भी हो सकती है, तो उसके बारे में मैं मिलिंद सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरी टीम को ये समझा दे, और साथ में कुछ चेरी ऑन द केक भी हो जाए तो मिलिंद सर अच्छा रहेगा। थैंक यू संदीप भाई। थैंक यू संदीप भाई। जैसा संदीप भाई ने बताया कि कुछ इंडस्ट्री में डिग्रोथ होने वाला है, तो जैसे ही हमने अभी बताया आपको कि मारुति का ग्रोथ अच्छा रहेगा, तो मारुति एक लार्जेस्ट कंपनी है, तो खुद की पोजीशन बहुत आसानी से छोड़ेगी नहीं, लेकिन उसका जो पोजीशन है वो नीचे आ जाएगा, नीचे की पायदान पे आ जाएगा। तो थोड़े से चेंजेस जो निगेटिविटी की तरफ से जाएंगे, तो इन्वेस्टर को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो मारुति ले रहे हैं तो थोड़ा सा डिग्रोथ उनमें एक्सपेक्टेड है या स्पीड कम रहेगी। तो बिग डाउन में अगर हम देखें तो मारुति है व्हीकल सेक्टर में। यहाँ पे एक क्लेरिफाई कर दूं मिलिंद भाई, मारुति का धंधा घटने वाला नहीं है, लेकिन दूसरी कंपनियां ज्यादा ग्रोथ करेगी, जिसके कारण ये 11वें नंबर से 17 पे आ जाएगी। सही समझ रहा हूं मैं? करेक्ट सर, करेक्ट है ना? ओके ओके हाँ। तो हमें अगर हम देखें प्राइवेट सेक्टर में जैसे HDFC और बंधन बैंक जैसे प्लेयर अच्छा धंधा करेंगे, तो नेचुरली SBI का पोजीशन थोड़ा सा वीक होगा कंपैरेटिवली। SBI भी अच्छी कंपनी है, लेकिन पायदान में नीचे हो सकते हैं, क्योंकि नीचे से जो ग्रोथ अच्छा कर रही कंपनी, तो उनका बोलबाला ज्यादा रहेगा। विप्रो का बिजनेस भी एवरेज रहेगा, और वो TCS और इन्फोसिस के जैसा नहीं रहेगा, तो वो भी नीचे आ सकते हैं थोड़े। देन लार्सन एंड टूब्रो भी उनका जो 18वां पोजीशन है, वहां से 28 तक आ सकते हैं। BPCL, NTPC और एक्सिस ये भी प्लेयर जो है वो नीचे नीचे थोड़ा सा पायदान में जाएंगे, क्योंकि उनको रिप्लेस करने वाली या उनसे भी अच्छा ग्रोथ करने वाली कंपनियां नीचे आने वाली है, ग्रोथ अच्छा कर ही रही है। देन हीरो मोटर कॉर्प भी है, जो उसका आज 48 नंबर है, वो 61 पे आएगा। तो जैसा संदीप भाई ने बताया कि चेरी ऑन केक जैसे IPL में होता है कि कोई हार्दिक पांड्या मिल गया जो IPL ने जबरदस्त परफॉर्म कर दिया, और उसको डायरेक्टली एंट्री मिल गई इंटरनेशनल इंडियन क्रिकेट टीम में, तो वैसे कुछ वाइल्ड कार्ड शेयर्स है हमारे पास। जैसे जुबिलेंट फूड अगर हम देखें, रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज जिसका डोमिनोज पिज्जा है, होंग किचन है उनका, और एक प्रोडक्ट है। तो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री भारत में सबसे तेज गति से बढ़ रही है, तो उसमें जुबिलेंट फूड एक है जो हम भले वो निफ्टी 500 200 में नहीं रहे, या निफ्टी 50 में नहीं रहे, निफ्टी 100 में नहीं रहे, बट ये जो प्लेयर्स हैं वो जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को चार चांद लगाने वाले स्टॉक्स है। लाल पैथलैब का भी जैसे देखा हमने, तो 50,000 करोड़ तक का बिजनेस हो सकता है, और हेल्थ केयर सेक्टर जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, तो वो भी एंट्री पे हमें ध्यान रखना चाहिए। IRCTC आज एक छोटा बिजनेस है कंपैरेटिव टू अदर दिस बिजनेसेस, बट वो मोनोपोली बिजनेस है और उसका ग्रोथ भी जबरदस्त होने वाला है। देन इंटरनेट कैटलॉग में Naukri.com जो है, जैसे इन्फो एज है जिसका मतलब उनका अलग अलग बिजनेसेस इंटरनेट के हिसाब से है, तो जीवनसाथी.com, Naukri.com, शिक्षा.com करके उनके बहुत सारे पोर्टल्स हैं, और ये जो बिजनेस है इसमें डिमांड 20-20% से ग्रोथ हो रही है। अगर 10 साल में
10% भी सॉरी एवरी ईयर अगर 10% सेल्स ग्रोथ होती है और प्रॉफिट परसेंट 15 या 20% होता है तो 10 साल में स्टॉक 10 गुना हो जाता है। तो ये तो 20% से चलने वाले स्टार प्लेयर है। तो हमें जुबिलेंट फूड, डॉक्टर लालपत लैब, IRTC एंड Naukri.com या इन्फोएज, इस पे पूरा ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो कुछ शेयर्स हैं हमने बताए हैं उसमें हमारा एक्सपेक्टेशन ये चारों पे ज्यादा है। एंड ऊपर जो बताए हैं स्टॉक बिग जंप वाले, उनके ऊपर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सभी फोकस करें। मैं पीयूष सर से रिक्वेस्ट करता हूँ अगर इन्वेस्टर को कोई बाकी के क्वेरीज है तो अगर क्वेरी सेशन स्टार्ट कर सकते हैं क्या? राइट मिलिंद भाई, पहला तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने और संदीप भाई ने ये जो आशिम जी और हनुमेश जी का जो डेटा था उसको अच्छी तरह से रॉ डेटा में से आपने उसको प्रेजेंटेबल डेटा में कन्वर्ट किया और इट वाज इजी टू अंडरस्टैंड। इतना समझ में आ गया कि कुछ कंपनियां के नंबर नीचे आएंगे और जो आउट परफॉर्मर है वो ऊपर बढ़ने वाले हैं, वो आगे बढ़ेंगे। मेरे को और एक चीज समझ में आपकी प्रेजेंटेशन से आई कि जो आपने 2030 की जो टॉप की कंपनीज बताई वो सब लीडर कंपनी है अपने सेक्टर की। अगर आपने जुबिलेंट फूड बोला तो वो रेस्टोरेंट की लीडर है ना? डॉक्टर लालपत तो हेल्थ केयर का लीडर है, नौकरी IRCTC इंटरनेट की। तो जो आपने ली है वो लीडिंग कंपनी ली है। ऐसा क्यों है कि सबसे बड़ी लीडिंग कंपनी आपने ली? HDFC लिया आपने, इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस क्यों नहीं लिया? डेफिनेटली सर, जैसा हमने आपने सिखाया है तो एक तो मार्केट में अगर पैसा कमाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि ग्रोइंग कंट्री। तो हमारी कंट्री तो आउट परफॉर्म कर ही रही पूरी दुनिया को। दूसरी चीज ग्रोइंग इंडस्ट्री, तो ये सब ग्रोइंग इंडस्ट्रीज के स्टॉक्स है। तीसरी चीज जैसा सेक्टर लीडर का हम बोल रहे हैं, तो सेक्टर लीडर वो कंपनी होती है जो अच्छे समय में भी अच्छा परफॉर्म करे और खराब समय में वो टिकी रहे और परफॉर्म करे। जैसा हम अगर आज का भी उदाहरण ले ले जुबिलेंट फूड का, जैसे मैं आज देखता हूँ तो हर एक सोसाइटी के बाहर पिज्जा वाले अभी भी डिलीवरी कर रहे हैं, लेकिन किसी भी छोटे शॉप्स जो लोग डरते हैं वहाँ कंपैरेटिवली जाने के लिए, तो जो सेक्टर लीडर रहता है उसका बिजनेस मॉडल बेटर रहता है, वो हर एक सिचुएशन को फेस करता है, उसके ऊपर डेप्थ कम रहता है, एंड जो भी अपॉर्चुनिटी आने वाली है उसमें सेक्टर लीडर सबसे ज्यादा फायदा लेके सबसे तेजी से बढ़ता है। तो हम जैसा आपने सिखाया है उस हिसाब से हमें हमेशा ग्रोइंग इंडस्ट्री एंड सेक्टर लीडर पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि सेक्टर लीडर वो होता है जो सबसे ज्यादा धंधा करता है, सबसे ज्यादा प्रॉफिट करता है और उसकी मैनेजमेंट उतनी कैपेबल होती है और उनके बिजनेस में एक यूनिक मॉडल होता है जो छोटे प्लेयर मैच नहीं कर पाते। राइट, गुड गुड मिलिंद जी, बढ़िया, थैंक यू सर। पीयूष सर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। हेलो, बोलो संदीप भाई। हाँ, जिस तरह मतलब लीडर परफॉर्म करता है, लाइक जब विराट कोहली और तेंदुलकर, तो कोई टारगेट मतलब डिफिकल्ट नहीं लगता है, जब खेलते हैं तो आसानी हो जाता है, तो वो परफॉर्मेंस इनमें दिख रहा है, तो इसीलिए हमने ये चुने हैं इनके। ओके ओके, नहीं गुड, बहुत बढ़िया काम किया आप लोगों ने और मुझे बहुत खुशी है। एक्चुअली आप लोग पिछले 7 दिन से काम कर रहे थे और मुझे एक चीज का दुख था कि मैं इतना सपोर्ट नहीं कर पा रहा था क्योंकि ऑलरेडी कई जगह पे बिजी था और मेरे को थोड़ा डर लग रहा था कि क्या चल रहा होगा, क्या चल रहा होगा। लेकिन अमेजिंग, मेरे को बहुत, मैंने एंजॉय किया। मुझे अभी ऐसा लग रहा है मिलिंद भाई कि ऐसे भगवान दिन दिखाए कि मैं ऐसे ही आप लोगों को सुनता रहूं, खाली प्रेजेंटेशन की जरूरत ना पड़े। नहीं, ये सब आपके गाइडेंस की वजह से है। ऑनेस्टली देखो, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को मैथमेटिक्स का डर तो 10वीं से था, तो मुझे हमेशा डर लगता था कि स्टॉक मार्केट में कुछ बड़ा मैथमेटिक्स रहेगा, बट वो आपने इतना सिंपल कर दिया है, आपकी वजह से हम सब सीख रहे हैं। चलिए, आपके सबकी बहुत अच्छी मेहनत है और सबसे बड़ी चीज कंसिस्टेंसी। खराब समय में टिकना लीडर की आदत होती है, जैसे आपकी सब लीडर कंपनियां खराब समय में टिकी हुई है, वही चीज हमें करना है ना? चलिए अभी हम क्या करते हैं मिलिंद जी, हम क्वेरी सेशन रखते हैं। क्वेरी सेशन में हम कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे। लोगों ने जो कोई क्वेरी लिखी हुई है, वो लिखी हुई क्वेरी को हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अगर पढ़ के बताना चाहे वो पढ़ के बता सकते हैं। एक एक करके मैं नाम बोलूंगा, वही लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे, राइट? क्योंकि मैं मानता हूं 100 लोग हैं आज, तो कई लोगों को सब साथ में बोलेंगे तो थोड़ा कंफ्यूजन होगा। तो मैं एक एक करके नाम कहूंगा, जो कमेंट्स ग्रुप में आए हुए हैं हम वो कमेंट पे आगे बढ़ेंगे। 1918 हो चुकी है, हम ये सेशन 1935 तक कंटिन्यू करेंगे, राइट? तब तक जितनी क्वेरी हो
वी आर गोइंग टू टेक ऑल दिस क्वेरीज, और आपके रिलेटेड ग्रुप में जो लोगों ने प्रेजेंटेशन बनाया है मैं आप ही को पूछता रहूंगा, राइट? यस सर। सबसे पहले मुझे सबको एक बार मैं सबको म्यूट कर देता हूं, राइट, सो दैट देयर विल बी नो डिस्टर्बेंस. Queries can be raised in Hindi or English, anything, right? Wherever you are comfortable. So let me read your queries. Yeah, Swati madam, hello. Vikash sir, please upload today's meeting. Yeah, we will upload today's meeting. मैं डिस्क्लोजर बता दूं, जो भी चीज हमने आज डिस्कस की है, जो स्टॉक की बात की है, इसे टिप की तरह मत समझिएगा, क्योंकि देखो टिप जो होती है उसमें ये कहा जाता है HDFC ले लो, इतना टारगेट है, इतना स्टॉप लॉस है, ये टिप नहीं है, ये एक डायरेक्शन है, राइट? तो अपने खुद के हिसाब से सोच के डिसीजन लीजिएगा, राइट? ओके विकास सर, ITC शेयर का इमेज आपको शेयर करना है तो कहाँ करें, प्लीज रिप्लाई. विकास जी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो. बताइए, आपने 2-3 अलग अलग क्वेरी लिखी है, आपकी क्या क्वेरी है? यस विकास, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. विकास आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो एंड यू कैन रेज योर क्वेरी. ओके, ITC जो है सिगरेट की, हम मानते हैं कि चलो सिगरेट की कंपनी है, मेजर धंधा उसका अभी भी सिगरेट से आ रहा है, बट नाउ ITC इज डूइंग वेरी गुड बिजनेस इन कंज्यूमर प्रोडक्ट, पैकेज फूड्स, राइट? वो लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, उनका ग्रोथ वहां पे पैकेज फूड में और कंज्यूमर प्रोडक्ट में 20% CAGR का है, पर ओवरऑल ITC एक बड़ा कंपनी है. मैं खूब आशा रखूंगा, मैंने खुद ने अभी जो फॉल आया था उसमें मैंने ITC मैंने ऐड किए मेरे पोर्टफोलियो में, राइट? इट इज अ डेब्ट फ्री कंपनी एंड आई होप ITC आने वाले समय में बढ़िया करेगा. पर याद रखिए ये इमर्जिंग इंडस्ट्री नहीं है, राइट? इट इज अ ग्रोइंग कंपनी एंड वी आर गोइंग टू क्रिएट गुड मनी फ्रॉम दिस कंपनी, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेरी मैं पढ़ रहा हूं. मुदित, यस मुदित, आपने ICICI रिलेटेड 2-3 बार लिखा है. अगर मुदित आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड रेज योर क्वेरी. ओके, लेट मी क्लैरिफाई अबाउट ICICI. मुझे 100% ये भरोसा था कि बहुत से लोग ICICI का क्वेरी पूछने चाहिए, क्योंकि देखो ICICI बैंक को हनुमेश जी के डेटा के हिसाब से इन्होंने 10th नंबर पे रखा है, राइट? इन रियल टर्म ICICI शुड बी अबाउ कोटक बैंक, क्योंकि कोटक से बड़ा बैंक है, कोटक से ज्यादा धंधा करता है फ्रेंड्स. लेकिन ये हकीकत है, ICICI इज नॉट बिगर इन मार्केट कैप देन कोटक बैंक, क्योंकि ICICI बैंक के NPA इतने अच्छे नहीं है. ICICI बैंक के NPA ज्यादा है. कोटक बैंक और HDFC बैंक, ये दो बैंक वेल मैनेज्ड बैंक है, जिसकी वजह से कोटक कम धंधा करने के बावजूद ICICI से ज्यादा प्रॉफिट करता है, एंड दैट इज द रीजन मार्केट कैप ऑफ कोटक इज हायर देन ICICI in real term, right? So Kotak is a good performer. ICICI is really not a good performer. एक जमाना था जब HDFC बैंक से बड़ा था ICICI. देखो आज क्या टाइम आ गया है, कोटक भी ICICI से आगे निकल गया है, राइट? ICICI बैंक 10th नंबर से 13th नंबर पे डाउनग्रेड हो जाएगा, जबकि कोटक अपने ग्रेड को बढ़ाएगा, राइट? सो होप मुडी I was able to clear your query. Chandrani Gangopadhyay, IRCTC rail sector. Yes, you can clarify your query. आप पूछ सकते हो ऑनलाइन अपने आप को अनम्यूट करके, if you can do it, कि आप
IRCTC में क्या पूछना चाहते थे? यस, चंद्रानी गंगोपाध्याय, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. Sir, actually, I was in the impression that I thought IRCT is a rail company, but as you clarified that it's certainly a internet ticketing company. That's right. But my question is different. Actually, you are telling that this is 2020 and we should buy the good companies and should get a good return in 2030. And if you see Nifty, there the company's ranking has been changed, but almost all the companies remain same in Nifty 50. Yeah. So then, I mean, why don't we buy Nifty index? Right. See, here you are saying that almost all the companies. Yeah. Let me clarify that almost all the companies are staying there, but majority of the companies have been downgraded. As you can see, Info downgraded. Many of the companies are downgraded. So, if we want to create a wealth, it's better to go in some jumping companies which are in growing industry, which are having low debt type of business, having good margins, having consistency in profit. If they are having consistency in profit, then you will see that you are going to create huge wealth. Index buy करेंगे तो index में हमें NAV मिलेगा. We are going to see percentage CAGR return. But if we are going to buy good companies, we are going to get wealth. हमें एक बार मैंने इन्वेस्टमेंट किया था अल्ट्राटेक में वर्षों पहले. I have invested in TCS many years back. I have invested once, but now I am getting my earning every year. I am assured right now कि कल मुझे कुछ भी हो जाए तो भी ये पैसा तो जिंदगी भर मेरे बैंक में आने वाला है जब तक कि ये कंपनी रहती है ना. अब ये चीज पाने के लिए we need good companies which can sustain long. Right, sir? Yes. Okay. Right. So thank you, Gangupatya ji. Let me move to next query. Yeah, Milan bhai, good evening. असीम भाई, मिलन भाई ने आपको कहा है वेल डन, तो वेल डन ले लीजिए. अमित कौरी, या असेंबली, गुड प्रेजेंटेशन. मुदित, आपका क्वेश्चन है एक्सिस बैंक भी, तो यहां मैं कहना चाहूंगा एक्सिस बैंक नहीं. देखो, आईसीआईसी बैंक भी टॉप 5 में था 2010 में. इनफैक्ट आज वो टॉप 5 में नहीं रहा है. राइट, एज यू कैन सी आईसीआईसी बैंक का नंबर कौन सा आ गया है? 10वें नंबर पे. एसबीआई टॉप 5 में था, आज वो भी नहीं रहा है. एनटीपीसी दूसरे नंबर की सबसे बड़ी कंपनी थी. देखो, एनटीपीसी का तो मिलिंद भाई ने क्या बताया है कि एनटीपीसी तो 46 नंबर पे चली जाएगी. तो कहां ये इंडिया की दूसरे नंबर की कंपनी, कहां 46 नंबर. मैंने एनटीपीसी में इन्वेस्ट किया होता, मैंने नुकसान नहीं किया है, क्योंकि कंपनी पैसा कमा रही है पर ग्रोथ भी नहीं कर रही है. तो फिर मैं एफडी क्यों ना ले लूं, है कि नहीं. मुझे मेरे पैसे को बढ़ाना भी है, कंसिस्टेंट उतना का उतना पैसा मिलेगा थोड़ी ना चलेगा. राइट. सो एक्सिस बैंक इतना अच्छा ग्रोथ नहीं है जितना एचडीएफसी बैंक का है. और मुदित, ये सोचो ना कि 20 साल में एचडीएफसी, कोटक, आईसीआईसीआई, ये सब कंपनियों ने अच्छी फ्रेंचाइजी बनाई. लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड्स, ये सब बहुत बड़े बन गए. एएमसी. आप एक्सिस बैंक देखो, लाइफ में कुछ नहीं किया, जनरल में कुछ नहीं किया. आज लाइफ और जनरल इन कंपनियों को 30-30 हजार करोड़ का धंधा दे रही है. तो दूरदर्शी थी ये बैंक, एचडीएफसी और आईसीआईसी, कोटक जैसी, जिन्होंने लाइफ इंश्योरेंस में पैसा निवेश किया. एक्सिस ने क्यों नहीं किया? राइट. उनको नुकसान हो रहा है कि नहीं. और आज मैं अगर शेयर होल्डर हूं तो मुझे नुकसान हो रहा है. तो बढ़िया कंपनियों में निवेश करो, चलेगा उसमें मत निवेश करो. कोल इंडिया, मुदित आपने कहा है इट्स 10 राइट नाउ. नहीं, कोल इंडिया 10वें नंबर की कंपनी नहीं है.
कोल इंडिया का नंबर है टॉप 50 में, किधर है मेरे ख्याल से 35, देखो 33 नंबर पे है कोल इंडिया, है ना। ग्रोथ नहीं होता है बहुत हाई इन कंपनियों में। रोहन, there are some companies which are not very large cap but leaders in sector. You are absolutely right, Rohan. How many of these rising stars should be in our portfolio? Example, PI, Supreme, Astral Poly, 3M India. बहुत बढ़िया क्वेश्चन है रोहन, और ये क्वेश्चन होना ही चाहिए। ये क्वेश्चन मैं थ्रो करना चाहूंगा मिलिंद भाई पे। मिलिंद भाई, आप इसका जवाब दे सकोगे जो रोहन ने पूछा है? मेरे ख्याल से इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रोहन इज फ्रॉम दिल्ली, राइट? रोहन, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो? हेलो, या यस रोहन जी, यस प्लीज। हाँ रोहन जी बोलिए। हेलो मिलिंद भाई। हाँ रोहन जी बताइए। हाँ सर, जैसे कुछ कंपनीज है जो रिलायंस जितनी बड़ी तो नहीं है, करेक्ट, बट वो अपनी सेक्टर में मार्केट लीडर है, जैसे वीआईपी बैग्स है, पीआई इंडस्ट्रीज है, हाँ हाँ, एलटीटीएस है। ओके, तो उनका रेट ऑफ ग्रोथ बड़ी कंपनी से ज़्यादा है, मार्केट कैप भले ही कम हो। करेक्ट। तो क्या हम मिड कैप कंपनी जिसका रेट ऑफ ग्रोथ ज़्यादा है उसको प्रिफर कर सकते हैं, बल्कि इन एक्सचेंज फॉर बिग कंपनी? सर इसमें ऐसा है कि हमें हमेशा से पहला क्राइटेरिया जैसे सर ने हमें सिखाया है कि जो कंपनी धंधा कर पाती है, सबसे बड़ा सेल्स प्रॉफिट कहाँ से आता है? तो धंधे से ही आता है। जो कंपनी सेल ही नहीं कर पा रही है, अगर वो जैसा आपका एक एग्जांपल है जिसमें अगर वो कंपनी सेक्टर लीडर नहीं है, उसकी सबसे ज़्यादा सेल्स नहीं कर रही है, तो छोटे प्रॉब्लम आए, जैसे अभी समझो जैसा अभी ये कोविड का आया, तो ये कंपनियों को इमीडिएटली फटका बैठ जाता है। जो कंपनी का सेल्स कम है, उसको थोड़ा भी सेल्स टफ सिचुएशन आ गई तो वो धंधा उसका गड़बड़ा जाता है और प्रॉफिट काफ़ी गिरते हैं। और मिड कैप में ये हमेशा देखा गया है, जैसे ही हम सब एक्सपीरियंस भी करते हैं कि अगर जैसे ही मंदी आती है तो सबसे पहले जो बड़ी गिरावट आती है वो मिड कैप स्मॉल कैप में आती है, और अच्छे टाइम पे वो अच्छी चलती है। लेकिन अगर आप सबसे बड़ा सेल्स अगर सेक्टर का लेते हो, उस सेक्टर का जो बड़ी कंपनी है जिसकी मास्टरी है धंधे में, जैसे हमने टीसीएस का देखा फॉर एग्जांपल, ये सभी सेक्टर लीडर देखे, डीमार्ट देखा। अगर आप इसमें भी बोलोगे डीमार्ट में समझो वीमार्ट का सेल्स थोड़ा अच्छा है, बट हमें ये देखना ग्रोथ अच्छा है, लेकिन हमें ग्रोथ के साथ सेल्स का कॉम्बिनेशन भी जरूरी है, क्योंकि टफ टाइम में सिचुएशन यही है कि जो धंधा कर पाएगा वही प्रॉफिट ले पाएगा। आई होप तो थोड़ा मैंने हाँ बोलिए सर, सॉरी। तो इस एग्जांपल में क्या पीआई इंडस्ट्रीज यूपीएल से बेटर नहीं है, क्योंकि यूपीएल पे डेब्ट बहुत ज़्यादा है? या एग्रीड, इन दैट केस कैसा है कि पीआई इन्वेस्टर को स्टॉक अगर चूज करना है तो उसको उसकी लिमिटेशन भी पता रहनी चाहिए। आपका एग्जांपल सही है कि उसके ऊपर डेब्ट ज्यादा है और आप पीआई ले सकते हो, लेकिन आपको वो टाइम पता रहना चाहिए कि आधा धंधा यूपीएल कर रहा है और थोड़ा पोर्शन ये कर रहा है, पीआई इंडस्ट्री कर रहा है। तो उस हिसाब से अपने एक्सपेक्टेशन को हमें मोल्ड करना चाहिए। डेफिनेटली हर एक सेक्टर में होता है, जैसे केमिकल सेक्टर में आप देखोगे तो विनती ऑर्गेनिक्स है, जबरदस्त ग्रोथ है उसका, पीडीलाइट से भी अच्छा है फॉर एग्जाम्पल। बट हमें लेते टाइम वो क्लियरिटी होनी चाहिए कि ये कंपनी का सेल्स उतना नहीं हो सकता है जितना ये बाकी की कंपनियां करेगी। सिर्फ इनकी एक खूबी है कि इनके प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, उनकी कोई पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी रहेगी, उनकी वजह से उनका कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ज्यादा है सेक्टर लीडर से भी। बट हमें वो बड़ी क्वांटिटी में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम अगर हमारे पास ये देखे जैसे हमने 25-30 कंपनियां बताई है, तो उसमें एक दो आउट परफॉर्मर आप रख सकते हो, लेकिन विद अवेयरनेस और 2-3% के साथ ही पोर्टफोलियो के। ओके, आई होप सर अगर कुछ ऐड करना है। बराबर है, आपने एकदम परफेक्ट बताया, राइट ना, कि अगर यूपीएल डेब्ट फ्री होती तो मैं उसे 5% ले लेता, राइट ना। पर यूपीएल डेब्ट फ्री नहीं है, यूपीएल धंधा करती है पर डेब्ट ज्यादा है, इनकंसिस्टेंसी है प्रॉफिट में। अब पीआई छोटी कंपनी है, डेब्ट फ्री है, अच्छे मार्जिन है, कंसिस्टेंसी है, पर धंधे के लिमिटेशन है, वो इतनी होशियार नहीं है धंधा करने में जितनी यूपीएल है। तो पीआई अगर मैं लेता हूं तो मुझे 2-3% लेने चाहिए, राइट। कुछ कंपनियों में ये जो सेक्टर जैसे यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन में है, टीसीएस मार्केट लीडर भी है और सबसे अच्छा भी है, तो ऐसे केस में मैं ज्यादा पैसे टीसीएस पे लगा सकता हूँ।
क्योंकि सारी खूबियां इसमें है, राइट। सेम थिंग HDFC बैंक, लीडर भी है, बढ़िया भी है, राइट। ओके तो हमेशा अपनी कंपनी के नेगेटिव पॉइंट भी ध्यान में रखो रोहन, बराबर। ओके, मैंने थैंक यू। खुद में PI इंडस्ट्री 2010 में लिया था, बढ़िया पैसा बना है। मैंने बहुत सी छोटी कंपनियों में पैसा लगाया, जैसे रिलैक्सो में लगाया था, राइट। पर रिलैक्सो अपने सेक्टर में बढ़िया भी कंपनी है, डेट फ्री भी है, तो अच्छा बना। ला ओपाला में मैंने पैसा लगाया, TTK में भी लगाया, पर देखो ला ओपाला में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा आती है, जब धंधा गिरता है तो उसके धंधे ज्यादा इफेक्टेड हो जाते हैं। अब ये मुझे पहले नहीं पता था। मैंने बेवरेजेस की कंपनी में, GM ब्रू में भी लगाया, UBL में भी लगाया। GM ब्रू में वॉलेटिलिटी ज्यादा आती है, क्योंकि मंदी में ये लोग धंधा उतना नहीं कर पाते जो राजा कंपनियां कर पाती है, बराबर रोहन। एक यस सर। गलत फहमी मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि ये गलत फहमी मुझ में भी थी। 10 साल पहले मैं बहुत मीटिंग अटेंड करता था और मैंने ये बहुत कहावतें सुनी थी कि पीयूष, बढ़िया पैसा कमाना है, जबरदस्त तेजी वाला शेयर चाहिए तो स्मॉल कैप में लगाओ, स्मॉल कैप जबरदस्त दौड़ते हैं। सेफ्टी वाला पैसा चाहिए, लार्ज कैप में लगाओ। अरे कौन बोलता है लार्ज कैप सेफ्टी है और बढ़िया पैसा स्मॉल कैप में बनता है? गलत बात है, ये बिल्कुल गलत चीज है। स्मॉल कैप लार्ज कैप से क्लासिफाई मत करो, इंडस्ट्री लीडर से क्लासिफाई करो। अगर आपका स्मॉल कैप जुबिलेंट जैसा है, इंडस्ट्री लीडर है, अगर आपका स्मॉल कैप Naukri.com जैसा है, अपने सेक्टर का लीडर है, तो आप ज्यादा पैसे भी लगा सकते हो वहां पे। और अगर आपका लार्ज कैप UPL जैसा है, तो थोड़ा कम पैसा लगाना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि उस पे डेप्थ है, राइट। तो लार्ज कैप स्मॉल कैप मत देखना, इंडस्ट्री लीडर की ओर से थोड़ा क्लासिफाई करना, राइट। क्योंकि मैंने जो गलतियां की है उससे मुझे बहुत नुकसान हुआ है, मेरा टाइम बिगड़ा है, मैं ये वो टाइम आने वाले 10 साल नहीं बिगाड़ूंगा, राइट। ओके सर, फिर उस हिसाब से वोल्टास में हम 5% लगा सकते हैं? वोल्टास डेफिनेटली, वोल्टास अपने सेक्टर का लीडर है, आप वोल्टास में लगा सकते हो, राइट। आपने 4 कंपनी लिखी है रोहन, एक PI लिखा है, हाँ। PI में 2-3% तक रहने दो सीमित। आपने सुप्रीम लिखा है, सुप्रीम अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है। देखो मुझे पूरी आशा है खेतीबाड़ी का धंधा और बढ़िया बढ़ेगा, सुप्रीम और एस्ट्रल पॉली ये दोनों उसका लाभ लेंगे, राइट। तो सुप्रीम में आप 3% जितना लगा सकते हो, 3M इंडिया में 2-3% लगा सकते हो। ये जो भी आपने कंपनी लिखी है, सब आपकी सिलेक्शन परफेक्ट है, गुड कंपनीज, राइट रोहन। ओके ओके, थैंक यू सर। और एक क्वेरी हम ले लेते हैं, बिकॉज टाइम इज राइट नाउ 9:36 हो गया ना समय, 1 मिनट ज्यादा हो गई है। मैं और एक क्वेरी किसी की पढ़ लेता हूं। अमित कौरी, रियली एंजॉयिंग टुडेज मीटिंग। अमित भाई आपने एंजॉय किया, मैंने भी बहुत एंजॉय किया है, क्योंकि देखो स्टूडेंट इतना बढ़िया करे मेरे को खुशी होती है। हितेश क्वात्रा, आई वुड लाइक टू स्पीक यू वंस आफ्टर दिस वेबिनार। हितेश भाई आप अगर अनम्यूट कर सकते हो, यू कैन आस्क योर क्वेरी राइट नाउ आल्सो। Hi Piyush brother, Hitesh Quatra this side. Yeah, hello Hitesh, welcome. Actually, मेरी query actually थोड़ी सी बड़ी है. It will be like it will take some time. So okay. आपने recently एक group जो WhatsApp पे create करा, so I was like randomly added to this group. तो मैं पढ़ता रहता हूँ कई बार आपकी chats, और अभी तो फिलहाल full time कर रहा हूँ मैं इस काम को. I have been in this market for around 6-7 years हो गए हैं. And losses भी खूब losses करे हैं in 2014-15. Then I exited the market for 3 to 4 years. मैं नहीं देखा फिर market. तो around in 2019 again I started. Now this time around I started investing. Okay, okay, good. So trading का भी शौक रखते हैं और investing का भी. I am from New Delhi only. Yeah. Okay, okay, very good. देखो न्यू दिल्ली में बहुत बढ़िया फैमिली है हमारा. There are several people who are from New Delhi and doing good. है ना, बढ़िया कर रही है लोग. तो हम लोग मिलेंगे. अभी तो खैर पोर्टफोलियो नेगेटिव है एट प्रेजेंट, क्योंकि क्रैश बहुत बड़ा आया है. और लाइक मैंने जो पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, सो आई वुड लाइक टू डिस्कस दैट विद यू. सो अभी तो इट विल टेक सम टाइम. लाइक अभी आप ले लीजिए क्वेरीज बाकियों की. सो आई वुड लाइक टू हैव अ वर्ड विद यू आफ्टर द वेबिनार.
यस यस, नो प्रॉब्लम। मैं यहाँ पे खाली एक चीज ऐड करूंगा कि इफ योर पोर्टफोलियो इज नेगेटिव, इट इज गुड थिंग, नो नीड टू वरी। हर वो व्यक्ति जिसने 3 साल में पोर्टफोलियो बनाया है उसका नेगेटिव होना ही चाहिए। नहीं है तो समझ जाओ कल नेगेटिव होने वाला है जब बाजार गिरेगा तब। पहले 3 साल मतलब इस मार्केट में आई थिंक कोई भी ऐसा नहीं है जिसने ना दिया हो इस मार्केट को, और सिखाता है मार्केट को भी जब दिया जाता है इसको। ओके, इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग और एजुकेशन है नहीं इस मार्केट के लिए, बहुत सी चीजों के लिए, तो अब वो कर रहे हैं ट्रेनिंग और एजुकेशन, तो होप टू लाइक यू नो गेन इन द फ्यूचर। राइट राइट, बहुत बढ़िया फ्यूचर है। इंडिया इज गोइंग टू बिकम 10 ट्रिलियन इकोनॉमी इन नेक्स्ट 10-15 years. So our companies are going to grow and definitely we all are going to grow, right? हम लोग स्ट्रेटेजी करेंगे कैसे इसका पूरा फायदा हम सब लोग उठा सके, राइट रितेश? हाँ हाँ, I would like to speak to you brother after the webinar. Yeah, sure, no problem. Okay. आपने किसी ने लिखा है व्हाट अबाउट बजाज ऑटो? बजाज ऑटो इज अ वंडरफुल कंपनी, इट्स बेस्ट इन 2-3 व्हीलर इंडस्ट्री। सबसे बढ़िया कंपनी है। इंडिया छोड़ो, बांग्लादेश में नंबर 1 है उनका रिक्शा, ऑटो रिक्शा। इंडोनेशिया, बहुत जगह ये लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। अफ्रीकन कंट्रीज में इन्होंने चाइनीज कंपनियों को मात दे दी। दे आर डूइंग वेरी गुड एंड इवन आई हैव इन्वेस्टेड इन बजाज ऑटो। मेरा पिछले 10 साल से बजाज ऑटो में पैसा लगा है। देखो इनके लिस्ट में क्यों नहीं आया पता है? क्योंकि जो मैंने 10 साल पहले किया जरूरी नहीं आप वो करो। वो जमाने में कुछ और इंडस्ट्री ग्रोइंग थी। अब आप नए जमाने में हो, ये नया इंडिया है, जहां नई इंडस्ट्री है, अब उन पे ध्यान दो, राइट? विकास, व्यू ऑन वरुण बेवरेजेस। वरुण बेवरेज इज अ वेरी गुड कंपनी विकास। इट बिलोंग्स टू ग्रोइंग इंडस्ट्री। मैं ये कहना चाहूंगा इट इज फ्रॉम ग्रोइंग इंडस्ट्री, बट वेरी गुड में थोड़ा वेरी निकालना चाहूंगा यहाँ पे। डेप्ट है उनके ऊपर, तो बहुत ज्यादा निवेश नहीं करो। पेप्सी के डिस्ट्रीब्यूटर है। मुझे एक चीज का बहुत दुख है कि इंडिया में मैं कोई ऐसी कंपनी में निवेश करना चाहता हूं जो बेवरेजेस में से हो, नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस। खैर कोई लस्सी छाछ की तो कोई कंपनी नहीं है, पर फ्रूट की, जूस की कोई अच्छी कंपनी बड़ी बन जाए। जब कभी पेपर बोट आएगी मैं जरूर उसको देखूंगा, राइट? पर मैं ढूंढ रहा हूं, अभी नहीं है ऐसी कोई कंपनी। मनपसंद बेवरेजेस ने धोखे किए, कई गलत काम किए, तो हटाओ उसको। हमें ऐसी कंपनी नहीं चाहिए जो मैनेजमेंट में चोरियां हो, राइट? हर्षद, डेल्टा कॉर्प, करंट सिनेरियो भूल जाओ हर्षद। करंट सिनेरियो खराब है। कोविड में कोई घूमने नहीं जाने वाला है। पर मुझे बताओ हर्षद, 2030 में एवरेज इंडिया में खाली 5% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन होंगे। इंडिया में 2 में से 1 व्यक्ति की इनकम हाई कंजप्शन वाली होगी। आपको क्या लगता है लोग नहीं जाएंगे क्रूज में? लोग नहीं जाएंगे डेल्टा कॉर्प के कसिनो में? जरूर जाएंगे, और ये कंपनी बहुत बड़ी बनेगी, राइट? शॉर्ट टर्म नेगेटिव है। देखो मैंने वंडरला लिया हुआ है, राइट? अभी टूट रहा है, टूटने दो, इट्स गुड। मुझे पता है ये साल कोई घूमने नहीं जाएगा, पर 2030 ध्यान में रखो, वी ऑल आर गोइंग टू क्रिएट ह्यूज वेल्थ। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग ये सब चीज मत सोचना दोस्तों, ये हमारे माइंड को डाइवर्ट कर देती है। पहले वेल्थ बनती है, फिर तो हम सब लोग ट्रेडिंग करके और प्रॉफिट करेंगे, पर ट्रेडिंग प्रायोरिटी नहीं है। वेल्थ के लिए शेयर बाजार बना हुआ है। तो लेट मी स्टॉप टुडेस प्रेजेंटेशन हियर। मुझे एक चीज का खेद है, मैं कई लोगों से बातचीत नहीं कर सका हूं, जो लोगों ने प्रेजेंटेशन में जिनका बहुत बड़ा योगदान था, राइट? लेकिन लाइफ बड़ी है, हेलो, आने वाले समय में बातचीत करेंगे। यस प्लीज। सर हर्षद बात कर रहा हूँ। यस कहिए हर्षद। यस सर मैंने वंडरला में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अभी कोरोना में भी अभी ऐड किया मैंने, लेकिन डेल्टा में अभी तक कुछ मेरा इन्वेस्टमेंट नहीं है। और अभी करंट सिनेरियो में जानता हूँ कि अभी तो नेगेटिव ही रहेगा इस साल भी और शायद अगले साल भी, राइट? लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट फिर भी करना चाहता हूँ। अगर ये 5 साल के बाद 10 साल के बाद इसका मतलब ग्रोथ अच्छा हो, फ्यूचर अच्छा हो, तो कैन बी एक्यूमुलेट राइट नाउ? आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी है और सही है। हमें नेगेटिव चीज हमारी कंपनी की पता रहे, जो आपको पता है कि ये साल बुरा है। लेकिन मुझे बताओ हर्षद, हमें लेने के भाव यानी अच्छे भाव कब मिलेंगे? बुरे समय में। बुरा समय है तभी तो उसके भाव अच्छे हैं, तो डेफिनेटली एक्यूमुलेट करने चाहिए, क्योंकि जब सब चीज अच्छी होगी
तब इसके भाव लेने जैसे नहीं होंगे, तब भाव दौड़ रहे होंगे और पूरी दुनिया लेने आती है। जब पूरी दुनिया लेने आती है ना, एट दैट टाइम आप वंडरला में छुट्टियां मनाना, डेल्टा कॉप पे छुट्टी मनाना, तब हमें एक्टिव रहने की कोई जरूरत नहीं है। राइट सर मैं भी वही सोच रहा हूँ। राइट, तो बढ़िया रहेगा। नो नीड टू वरी एट ऑल, दे आर गुड। थैंक यू वेरी मच सर। Okay, so thank you very much to each and every person. We enjoyed with everybody. जय किशन जी ने मुझे डेटा भेजा था, उन्होंने भी टॉप 21 कंपनीज का पूरा डिटेल बताया था। राइट, मैं चाहता था आज आपकी भी राय लूं इसके अंदर और आपकी कंपनियों को भी कंबाइन करूं, लेकिन वो हम नहीं कर सके। राइट, जिसका मुझे खेद है जय किशन जी। हम वापस अगेन ये सारे डेटा चेक करेंगे। धन्यवाद आप सारे लोगों का। जय हिंद टू एवरीबॉडी।